I take this moment to greet all of you in the loving name of our Lord Jesus, and especially I want to extend my gratitude to Pastor Jomon and all the people who are arranging this Bible study. I thank you all for this opportunity for me to be part of this, and greetings to all of you in the name of Jesus. और आज शाम के समय आप सभी को यीशु मसीह के नाम से अपने प्रेम का अभिवादन बताना चाहूँगा और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले पास्टर जुमोन और सारे ही लोगों को यीशु मसीह के नाम में अपने प्रेम को व्यक्त करना चाहूँगा. The idea of studying the entire Bible, all the 66 books in the 66 days, so fantastic. I'm so happy to hear about it. 66 दिनों में वचन के 66 किताबों की अध्ययन करने का जो योजना है वो काफी अद्भुत है और मैं दाद देना चाहूँगा. All of you who are part of this Bible study, you are really privileged. May God bless you all. और आप में से जो इसके भागीदार हो रहे हैं आप काफी आशीषित हैं और परमेश्वर आपको आगे भी आशीष देते जाए. It is a great blessing to know the word of God. परमेश्वर के वचन को सीखना अत्यंत आशीष का कारण है. And may God increase the thirst in all of us to learn from His word. और परमेश्वर के वचन के प्रति हमारे अंदर जो प्यास है परमेश्वर उसे निरंतर बढ़ाते जाए. And as I understand that we are studying the Bible very systematically, orderly, starting with the book of Genesis. और मैं जानता हूँ वचन के क्रम अनुसार हम एक-एक किताबों का अध्ययन कर रहे हैं. So you have completed the Pentateuch, you have completed the historical books, and then the poetical books, and today going to begin. I believe today we are going to begin the prophetical books. और यदि वो सच है तो आपने मूसा के 5 किताबों को समाप्त किया है, ऐतिहासिक किताबों को पढ़ चुके हैं, काव्यात्मक किताबों को पढ़ चुके हैं और हम आज भविष्यवक्ताओं की किताब को शुरू करेंगे. For me personally, it was a great blessing to understand the prophets of the Old Testament. व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को समझना मेरे लिए अत्यंत आशीष का कारण था. Especially it was, when I began to teach my students, as pastor had introduced, we have a Bible college here. So when I was teaching my students from the prophetical books, it was a great blessing for me to learn from prophets and how to understand the messages in the prophetical books. विशेषकर यहाँ के विद्यार्थियों को मैं जब शिक्षा दे रहा था, पास्टर ने परिचय में बताया कि हम यहाँ पर एक बाइबल स्कूल चलाते हैं और वहाँ पर जब विद्यार्थियों को मैं सिखा रहा था भविष्यवक्ताओं को किस प्रकार समझना चाहिए, मैं स्वयं उसके गहराइयों से प्रभावित हुआ और मेरे जीवन में अत्यंत आशीष का कारण था. And as today and tomorrow we are going to study from prophet Isaiah, I believe it will be a blessing to all of us. हम आज और कल भविष्यवक्ता यशायाह के किताब से देखेंगे और मैं आशा करता हूँ हमारे लिए वो आशीष का कारण बनेगा. So I'll be sharing a PowerPoint presentation, and we will be following that PowerPoint as we will be studying the book of Isaiah. और मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन को रखूंगा और जिस प्रकार हम शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं हम उस प्रेजेंटेशन से भी देखेंगे. Okay, let me share my screen. Okay, is my PPT visible to all of you? Yes, sir. Thank you. Okay, so we are going to start a study on the book of Isaiah, and I believe this is also the beginning class or the first class to the prophetical books as a whole. हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक से अपने अध्ययन को शुरू करेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि भविष्यवक्ताओं के संपूर्ण भाग का शुरुआत भी यही कक्षा है. Okay, so you have already studied the historical books, so the book of Kings and book of Chronicles you have studied. आप ऐतिहासिक किताबों के अध्ययन कर चुके हैं, आप राजाओं के किताब, इतिहास के किताब का अध्ययन कर चुके हैं. And as we study even the prophets, we will be very closely referring these book of Kings and book of Chronicles, because it is in that historical background the prophets have spoke
to the people of Israel or the people of Judah. और जब हम भविष्यवक्ताओं के किताब से अपने अध्ययन को आगे बढ़ा रहे हैं, हम साथ ही साथ ऐतिहासिक किताबों में बार बार लौटेंगे, क्योंकि उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ही ये भविष्यवक्ता अपने भविष्यवाणी को सुना रहे थे। So it is very important for us to have a reference to the historical books as we study the prophetical books. और इसीलिए जब हम भविष्यवक्ताओं के किताबों से देख रहे हैं, हम ऐतिहासिक किताबों की ओर मुड़कर देखना हमारे लिए अच्छा होगा। And we know that the prophets spoke to a community, isn't it? और हम इस बात को जानते हैं कि भविष्यवक्ताएं विशेष समुदाय से बात कर रहे थे। The prophetical books are written for us, of course, and for every people in the world, for all the time. But still, the prophets were speaking to a specific community in a specific historical period. भविष्यवक्ताओं की किताब हमारे लिए लिखा गया है, हम इसे पढ़ते हैं और दुनिया भर के लोग इसे पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उससे आशीषित होते हैं। लेकिन शुरुआत में जब इस किताब के भविष्यवाणियों को सुनाया गया था और लिखा गया था, वो विशेष समुदाय के लिए, विशेष जाति के लिए वो लिखा गया था। So to a historical situation, when the people were going through a particular experience, the prophets were speaking to that particular people the words of God. और जब उस विशेष ऐतिहासिक संदर्भ से लोग होकर जा रहे थे और विशेष संदर्भों का सामना वे कर रहे थे, परमेश्वर के दासों ने, परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर की भविष्यवाणियों को उनके उस संदर्भ में कह रहे थे। So we'll be looking at both the historical background and the prophets speaking to them and what the prophets were saying to them, and at the same time understanding how it implies to us. और उसी साथ ही साथ हम परमेश्वर के भविष्यवक्ता की इस किताब में देखेंगे, उनके संदर्भ को देखेंगे और उनकी भविष्यवाणियों पर गौर करेंगे, और ये भविष्यवाणी हमसे क्या बात करने वाला है और क्या कर रहा है उस पर भी गौर करेंगे। Now, when we talk about prophets or prophecy, okay, so we will have a question. When did prophecy begin in ancient Israel? Are you able to see the cursor moving when I move the cursor? Yes, sir. Okay, thank you. So we will have a question like, when did prophecy begin in Israel? और जब हम प्राचीन इज़राइल के बारे में सोचते हैं, हम ये सवाल जरूर कर सकते हैं, इज़राइल में भविष्यवाणी की सेवकाई कब शुरू हुआ? Who is the first prophet? सबसे पहला भविष्यवक्ता कौन है? When did prophecy begin? और भविष्यवाणी कब शुरू हुई? Now we have many references in the Bible. हम वचन में अनेक आयतों को देखते हैं। You can see here I have put few names and a few references. We have Genesis chapter 20 verse 7. It calls Abraham as a prophet, and in Deuteronomy chapter 18 verse 5, and again in many other places we see Moses is called as prophet. Similarly, Aaron, Miriam, Deborah, these all people are called as prophet with the title Nabi or prophet. और मैंने यहाँ पर कई सारे नामों को लिखा है, साथ ही साथ उनके आयतों को लिखा है। उत्पत्ति 20 के 7 में हम देखते हैं अब्राहम को भविष्यवक्ता बुलाया गया है। व्यवस्था विवरण 18 के 5 में, 34 के 10 में मूसा को परमेश्वर के भविष्यवक्ता के रूप में संबोधित किया गया है। हम देखते हैं निर्गमन 7 के 6 में आरोन को, निर्गमन 15 के 20 में मिरियम को, और इत्यादि लोगों को उनके उस विशेष आयत में इस शीर्षक से संबोधित किया गया है कि वे परमेश्वर के भविष्यवक्ता है। Now, if we, ask the question again, was Abraham a prophet? लेकिन यदि हम ये सवाल करें, क्या अब्राहम सच में एक भविष्यवक्ता था? Was Aaron a prophet? क्या हारून एक भविष्यवक्ता था? Did Miriam prophesy something? क्या मिरियम ने किसी बात का भविष्यवाणी किया? Do we know anything that was prophesied by Deborah? और दबोरा भविष्यवाणी करती हुई हम देखते हैं क्या? All these people like Abraham, Moses, Aaron, Miriam, Deborah, these all people in the Bible, we see them, somewhere in the scripture are given the title prophet, but, technically speaking, they were not into a prophetical ministry as such, but they were
leaders. They were, of course, very significant. And of course, God had revealed to them certain things. So, from that point of view, as leaders of the community, they are called as prophets. और हम देखते हैं परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में अब्राहम, मूसा, आरून, मिरियाम, दबोरा इत्यादि लोग जो है वो काफी परमेश्वर के प्रभावशाली लोग थे और उन्हें ये पद भी दिया गया था, ये नाम दिया गया था कि वे परमेश्वर के भविष्यवक्ता है। लेकिन भले ही वो अगुवे थे, भविष्यवक्ता की सेवकाई उनका विशेष सेवकाई नहीं था। Very correct. Now, the ministry of a prophet, like, being a prophet in the community, we don't see them like that, but they were given the title prophet for in virtue of some of the revelation they have received, or in virtue of the leadership they hold. हम साधारण रीति से जिस प्रकार भविष्यवक्ता की सेवकाई को समझते हैं, उस प्रकार की सेवकाई या किरदार ये लोगों ने नहीं निभाया था, लेकिन उन्हें ये पदवी दिया गया था परमेश्वर के भविष्यवक्ता के रूप में, और परमेश्वर के लोगों की अगुवाई वे कर रहे थे। Now, when you come to 1 Samuel chapter 3 verse 20, 1 Samuel chapter 3 verse 20, we read that Samuel was an accepted prophet, a seer in the community from Dan to Beersheba. Dan to Beersheba is from north to south in Israelite territory. So from Dan to Beersheba, he was a known prophet who was giving the prophetical oracles. लेकिन हम पहले शमूएल के किताब 3 के 20 में जब हम देखते हैं, हम शमूएल भविष्यवक्ता के संबंध में इस बात को देखते हैं कि वो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, और दान से लेकर बेर्शेबा तक सारे इजरायलियों ने इस बात का अंगीकार कर दिया था कि वो परमेश्वर से नियुक्त भविष्यवक्ता है, और वहां पर भविष्यवाणी की सेवकाई उसे हो रहा हम ये देखते हैं कि वो एक दर्शी भी है। Now, you read about Saul, who lost his donkey. He was searching for his donkey, and so some people say that you go and ask Samuel, he will know where the donkey is. So anybody have a question, anybody want to know something from God, then they go to Samuel, because he's well known as person who receives the message from God and delivers it to the people. और हम शाऊल की कहानी को जानते हैं। जब शाऊल जो है अपनी गदी को ढूंढ कर जा रहा था, अपने खोए हुए गदी को ढूंढ कर जा रहा था, लोगों ने कहा कि तुम भविष्यवक्ता शमूएल से जाकर बात करो, पूछो, और वो बता कर देंगे कि तुम्हारी गदी कहाँ पर है, क्योंकि उस समय तक लोगों ने इस बात का अंगीकार कर चुके थे कि शमूएल जो है परमेश्वर का भविष्यवक्ता है। Now, you see, a ministry like prophecy, delivering the message of God, began with Samuel. और भविष्यवाणी करने की जो सेवकाई है, हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में शमूएल के द्वारा वो सेवकाई शुरू होता है। Okay, now to continue with that understanding, now we have so many people in the Old Testament to whom you can call as prophets. और उस सेवकाई के संबंध में हम अनेक लोगों को देखते हैं जो पवित्र शास्त्र में हम जिन्हें भविष्यवक्ता बुला सकते हैं। You will see Samuel, yes, he is a prophet. Nathan, in the time of David, during the time of David, Nathan and God, they were prophets. Ahijah, you can mute your microphone. Ahijah, you can see, was a prophet during the time of Solomon and Rehoboam, and then Elijah, Elisha during the 10th century, 11th century, in the days of Ahab. All those things, they were all prophets. Samuel, Nathan, God, Ahijah, Elijah, Elisha, so on. हम शमूएल को देखते हैं, नातन को देखते हैं, गाद, अहीजा, एलिया, एलिशा, मिकाया, सारे ही लोगों को देखते हैं कि वो भविष्यवक्ता के किरदार को निभाते हुए सेवकाई को जरूर कर रहे थे। Now, I have written here pre-classical prophets and classical prophets. Now, in the Old Testament, when we look at prophets, we categorize them into two different categories. To one group of prophets, we call them as pre-classical prophet, and to another class of people, we call them as classical prophets. और जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, विशेषकर पुराने नियम को पढ़ते हैं, हम
सारे ही भविष्यवक्ताओं को दो अलग अलग श्रेणी में विभाजित करते हैं और हम देखते हैं कि किस प्रकार के भविष्यवक्ता है वो। अंग्रेजी में जिसे क्लासिकल प्रॉफिट्स कहते हैं और क्लासिकल प्रॉफिट्स कहते हैं, यानी शास्त्रीय भविष्यवक्ताई सेवकाई करने वाले और शास्त्रीय भविष्यवक्ताई सेवकाई से पहले आने वाले भविष्यवक्ताएं। Very good. So, among the classical prophets, I have put Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Amos, Hosea, Micah, and all those prophets, the prophetical books that we have in the Bible. शास्त्रीय भविष्यवक्ताओं का नाम मैंने वहां पर लिखा है, यशायाह, यिर्मयाह इत्यादि लोग जिनके नाम से हम भविष्यवक्ताओं की किताब को देखते हैं। Now, why are they called classical prophets? और उन्हें शास्त्रीय भविष्यवक्ताएं क्यों बुलाए गए हैं? We don't call Nathan or Gad or Elijah or Elisha or Samuel, we don't call them classical prophets. We call them pre-classical prophets. But Isaiah or Jeremiah or Ezekiel or Hosea, all those writing prophets, all the prophets, the books that we have, Hosea, Amos, all those things up to Malachi, we call them as classical prophets. Why? हम जो है नेतन, एलिया, एलिशा, इन सारे ही लोगों को शास्त्रीय भविष्यवक्ता नहीं बुलाते हैं, लेकिन उन्हें शास्त्रीय भविष्यवक्ताओं के काल से पहले आने वाले भविष्यवक्ता बुलाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनके नाम से भविष्यवक्ताओं का किताब लिखा गया है, यशायाह, यिर्मयाह, एजेकिएल इत्यादि भविष्यवक्ताओं को हम शास्त्रीय भविष्यवक्ताएं बुलाते हैं। लेकिन इस प्रकार का ये नाम या उपाधि उन्हें क्यों दिया गया है? Now, why is that? Is because they were literary prophets. Literary prophets means writing prophets. They wrote whatever they had prophesied. और इसीलिए इस प्रकार इनका नाम है क्योंकि वे साहित्यिक भविष्यवक्ताएं थे, और इसका अर्थ यह है कि उन्हें जो भविष्यवाणी दिया गया था उसे वो लिख कर रखते थे। Now, Samuel has prophesied many things, or Nathan has prophesied many things, or Elijah, Elisha, they have prophesied many things, but all the prophetical oracles are not written in a specific book under their name. Rather, most of the prophecies are written just in the book of Samuel or book of Kings. हम नेथन को देखते हैं, नातान भविष्यवक्ता को देखते हैं, एलिया को देखते हैं, एलिशा को देखते हैं। भले ही उन्होंने भविष्यवाणियों को किया, लेकिन उनके भविष्यवाणी एक विशेष किताब में जिस पर उनका नाम लगाया गया हो उस प्रकार लिखा नहीं है। लेकिन उनके भविष्यवाणियों के जो है संक्षिप्त में हम कई सारे ऐतिहासिक किताबों में इधर उधर पड़ा हुआ हम देखते हैं, और इस प्रकार ये बातें हैं। Correct. Now, but the prophets like Isaiah or Amos or Hosea, they wrote all the prophecies that were said by them. They wrote it. लेकिन यशायाह, एजेकिएल, होशेया इत्यादि भविष्यवक्ताएं जो भविष्यवाणी परमेश्वर के द्वारा उन्होंने हासिल किया उसे वे पन्नों में लिख कर रखते थे, किताबों में लिख कर रखते थे। Now, why was their prophetical oracles were recorded? Because they were, prophecies that was going to happen in a near future. They were predicted things that had to be happened in a very near future, and so it had to be recorded so that the later people can have a record of it. And even the prophecies had a long reach in the historical, when it will be fulfilled. Like there were prophecies of restoration, rebuilding, messianic hope, which had to happen many years later, and so it had to be recorded. और इस प्रकार इन्हें साहित्यिक भविष्यवक्ताएं इसीलिए बुलाए गए हैं क्योंकि उन्हें जो भविष्यवाणी मिला उससे उन्होंने लिख कर रखा, और इसीलिए उन्होंने लिख कर रखा क्योंकि जो भविष्यवाणी उन्होंने हासिल किया था वो जल्द आने वाले भविष्य के बारे में बताया गया था, उससे इंगित कर रहा था उन घटनाओं जो आने ही वाला है बहुत जल्द, उसके बारे में विवरण दे रहा था। और इसीलिए आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी को पढ़ने के लिए उसे लिख कर रखना जरूरी था। और साथ ही साथ उस भविष्यवाणियों में हम पुनर्स्थापना की बातों को देखते हैं, पुनर्निर्माण की बातों को देखते हैं, मसीहाई आशा के बारे में हम देखते हैं, और ये सारी बातों को भविष्य में पढ़े जाने के लिए या समझे जाने के लिए लिख कर रखना जरूरी था। Now, this kind of prophecy in Israel, it began in 8th century BC. और प्राचीन इस्राएल में इस प्रकार की भविष्यवाणी को हम 8वीं शताब्दी में शुरू होते हुए देखते हैं। The prophecy of Samuel, they belong to the closing time of 11th century, and Nathan, God, all their prophecies were in 10th century, and Elisha, Elijah, they were in 9th century. But from 8th century BC onwards, this classical prophecy began, or classical prophetical ministry began in Israel.
हम शमूएल के भविष्यवाणी की सेवकाई हम 11वीं शताब्दी में देखते हैं। नतान, गाद इत्यादि लोगों के बाद हम उसे ही 11, 10, 9 इस प्रकार की इत्यादि शताब्दियों में हम देखते हैं। लेकिन साहित्यिक या फिर शास्त्रीय भविष्यवक्ता की सेवकाई को जो है 8वीं शताब्दी से शुरू होते हुए हम देखते हैं। Okay, now we are going to come to the book of Isaiah. अब हम यशायाह की किताब में आएंगे। Now, Isaiah prophecy, it belonged to 8th century BC, as I said already. और यशायाह की भविष्यवाणी को हम 8वीं शताब्दी में पाते हैं। Now, it was not only Isaiah, there were also many others who were prophets in the 8th century. और 8वीं शताब्दी में केवल यशायाह एकमात्र भविष्यवक्ता नहीं था, लेकिन उनके साथ साथ भविष्यवाणी करने वाले अन्य भविष्यवक्ताओं की भी हम देखते हैं। Now, at least there can be 5 prophets who can be dated to 8th century. That is, one is Isaiah, as we have written here. Then we have Amos, Hosea, Micah, and Jonah. So all these 5 prophets, they belong to 8th century. और हम ऐसे 5 भविष्यवक्ताओं को देखते हैं जिनकी सेवकाई का समय हम 8वीं शताब्दी में पाते हैं। वो है यशायाह, जिस प्रकार मैंने पहले बताया, आमोस, होशैया, मीका और योना। Okay, now all these prophets were not speaking to the same community, but even we can see that prophet Isaiah and Micah, they were talking to people in Jerusalem and the people of the kingdom of Judah, whereas Amos and Hosea, they were talking to people in Samaria and even in Bethel, because Bethel was the religious center in kingdom of Israel. Okay, I have wrongly written here kingdom of Judah. It is not kingdom of Judah, it is kingdom of Israel. That's a mistake in the typing. So Samaria is the capital of the kingdom of Israel. So Amos and Hosea, they prophesied to kingdom of Israel and to Samaria. And Jonah, he prophesied to the kingdom of Assyria. हम यहाँ पर देखते हैं ये सारे ही 5 भविष्यवक्ताएं केवल एक ही समुदाय से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन भिन्न समुदायों से उनका बातचीत था, भिन्न समुदायों से उनका भविष्यवाणी था। यशायाह और मीका के बारे में हम देखते हैं कि वो दक्षिणी राज्य यहूदा के साम्राज्य में भविष्यवाणी कर रहे थे, विशेषकर यरूशलेम से वे बातें कर रहे थे। और उनके साथ ही आमोस और होशैया को देखते हैं, जहां पर वो उत्तरी राष्ट्र इजराइल के साम्राज्य से बात कर रहे हैं। वहां पर आप सुधार कर सकते हैं स्क्रीन में, क्या यहूदा नहीं है लेकिन इजराइल के राज्य वहां पर आना चाहिए। वहां पर सामरिया से, इजराइल के राज्य से और बेतेल से वे बातें कर रहे थे। और उनके साथ योना जो है, ना ही दक्षिण देश से ना ही उत्तरी देश से, लेकिन अशूर के साम्राज्य से बात करते हुए हम देखते हैं, निनवे से बात करते हुए हम पाते हैं। Very good. Now you see, probably when you studied the historical books, you have already seen that after the death of Solomon, the kingdom is divided, isn't it? There is a northern kingdom and there is a southern kingdom. Northern kingdom is kingdom of Israel, 10 tribes, and in the southern kingdom, it's the tribe of Judah and the tribe of Benjamin, right? Southern kingdom, or it is called as kingdom of Judah. So you can see the prophets also, they were focusing in either of this kingdom. So Isaiah and Micah, northern, southern kingdom. Amos and Hosea, they are speaking to the northern kingdom. और हम जानते हैं, ऐतिहासिक किताबों को जब हम पढ़ते हैं, सुलेमान की मृत्यु के बाद संपूर्ण संयुक्त इस्राएल का विभाजन हो जाता है। 10 गोत्र उत्तर की ओर चले जाते हैं, 2 गोत्र दक्षिण की ओर चले जाते हैं और अपना राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार जब भविष्यवक्ताएं आने लगे, वे भी किसी एक राष्ट्र से बात करते थे और वहां के लोगों को संबोधित करते थे। Okay, now let us look at what is the historical context of 8th century BC. 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के ऐतिहासिक संदर्भ को समझने की कोशिश करेंगे। Now you see, for you to understand the message of the prophets, it is very important to understand the historical context. भविष्यवक्ताओं के भविष्यवाणियों को समझने के लिए उनके ऐतिहासिक परिस्थिति या संदर्भ को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। Because they were, messages spoken to a particular context, and so unless you understand the context, you will not understand why is the prophet speaking like this.
और क्योंकि ये भविष्यवाणियां विशेष परिस्थितियों से होकर गुजरने वाले समुदाय से लोगों से किया गया था, और इसीलिए हमें ये समझने की जरूरत है कि वो परिस्थिति क्या है या संदर्भ क्या है कि हम इस संदेश की गहराइयों को मालूम कर पाए। Now, in 8th century BC, there is a very important political situation that comes. That is the rise of Ashurian Empire or Ashurian Kingdom. हम 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक ऐतिहासिक संदर्भ को देखते हैं, एक विशेष राजनीतिक परिस्थिति को हम देखते हैं जहां पर अशूर का साम्राज्य सामर्थ्य से उठकर आ रहा है। Now, when you read the Bible, you come across some, big nations in the ancient days or in the biblical days. हम बाइबल के कालों में उनके इतिहास में महान राष्ट्रों का या साम्राज्य का खड़ा होते हुए हम देखते हैं। Right, like Egypt. Egypt is a big nation, and Assyria is a big nation, and Babylonia is a big nation. Similarly, later, Persia, Media, it became a big nation. So you see, in the Bible, we hear or we read about kingdoms which were very vast, very powerful, very big. Like Egypt, Assyria, Babylon, and Persia, Media. हम इस प्रकार के विभिन्न राष्ट्रों को देखते हैं जो अपने समय में, अपने काल में काफी महान और काफी बड़ा हो चुके थे। हम मिस्र देश के बारे में देखते हैं, मिस्र का साम्राज्य बहुत सामर्थी हो गया था। उनके बाद अशूर साम्राज्य को हम देखते हैं जो बहुत सामर्थी हो गया था। अशूर के बाद बाबिलोन को आते हुए हम देखते हैं, वो सामर्थी हो गए थे। उनके बाद फारस के राष्ट्र को जानते हैं, वो साम्राज्य बड़ा होते हुए हम देखते हैं। और इस प्रकार से अनेक राष्ट्र आते गए और उनका साम्राज्य जो है विशालता से फैलाया गया था। Now, in 8th century, that is the time of Isaiah, when Isaiah is prophesying to the people of Judah, in that 8th century, we see the Ashurian kingdom is becoming more powerful. 8वीं शताब्दी में जब यशायाह दक्षिण राष्ट्र से भविष्यवाणी कर रहे थे, उस समय में अशूर के साम्राज्य को सामर्थ्य होते हुए हम देखते हैं। Now, there was a king by name Tiglath-Pileser III. He ruled from 745 to 727 BC. This is one of the ancient portrait of him. So this person, Tiglath-Pileser, was a very powerful man under whom this Ashurian kingdom becomes a huge nation that will conquer many other people group. हम 8वीं शताब्दी में एक व्यक्ति को देखते हैं जिनका नाम है तिग्लत-पिलेसर तीसरा, जिनका साम्राज्य या फिर राज्य का काल जो है 745 से लेकर 727 ईसा पूर्व में है। और ये व्यक्ति जो है बहुत ही ताकतवर व्यक्ति था, और इस ताकतवर व्यक्ति की अगुवाई में हम अशूर साम्राज्य को सामर्थ्य होते हुए देखते हैं और अनेक राष्ट्रों के ऊपर, जातियों के ऊपर चढ़ाव करते हुए अपने अधीनता में लेकर आते हुए भी हम पाते हैं। Now, when Ashurian kingdom became very powerful, in the beginning, they took control of Syria. They conquered Syria, or they brought Syria under their control, and later they brought the kingdom of Israel, that is northern kingdom, under their control. और अशूर का साम्राज्य जब सामर्थ्य होने लगा, सबसे पहले सीरिया के राष्ट्र के ऊपर चढ़ाव किए और उसे अपने अधीनता में लेकर आए। उसके बाद उत्तरी राष्ट्र यानी इजराइल को अपने कब्जे के अधीनता में लेकर आए। Now, I'll just show you some map and how things happen for your better understanding of the context. मैं आपके सामने ये नक्शा रखना चाहूंगा और यहाँ से समझाने की प्रयास करूंगा कि किस प्रकार उस संदर्भ में बातें पूरा हुआ था। Here you see 850 BC, that is 9th century, which is about nearly 100 years before Isaiah. So this is not the situation of Isaiah, but let me explain a little bit about what was before Isaiah. और यहाँ पर आप इस नक्शे में 850 ईसा पूर्व इस समय को आप देख रहे हैं। तकरीबन यशायाह के समय से 100 साल पहले की बात है ये। तो ये जो नक्शा है, यहाँ पर हम यशायाह की परिस्थिति को नहीं देख रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ से आपको समझाने की प्रयास करूंगा कि वहां पर हो क्या रहा था। Now you see these blue lines that you can see is Assyria. Now Assyria has not controlled Syria, or Assyrian kingdom doesn't include Samaria. Now Syria is a nation which is
Okay, you can see this map, my cursor. This part, this part where you see Samaria, Jerusalem. This is the kingdom of Israel and kingdom of Judah. Okay, this part is kingdom of Israel and kingdom of Judah. In the north, you have kingdom of Israel, and in the south, you have kingdom of Judah. Now, just north to it, upper part of it, we have Syria, and the capital of Syria is Damascus. Now, in the 9th century, Syria, Israel, and Judah, they were all independent, and Ashurian kingdom was just there, and it had not exerted its power over these people. आप अपने नक्शे के या फिर स्क्रीन के बाएं ओर देख सकते हैं, वहां पर हम समरिया को देख सकते हैं, यरूशलेम को देख सकते हैं, और उन इलाकों में जो है हम दक्षिण में यहूदा के राष्ट्र को पाते हैं, और उसके ऊपर जो समरिया है, समरिया उत्तरी राष्ट्र इजराइल का राजधानी है, वहां पर हम दोनों ही राष्ट्रों को देखते हैं, और उसके थोड़े ऊपर दमस्कस को देखते हैं। दमस्कस सीरिया राष्ट्र का राजधानी है, और उसके थोड़े ही पूर्व में हम असीरिया को देखते हैं, जो अपने में ही एक छोटा राष्ट्र था और उनका उतना कब्जा नहीं था। Now you see in the 9th century, now I'm talking something before the time of Isaiah. In the 9th century, you see Syria is, you can see it is more bigger and definitely powerful than Israel and Judah. And so you see Syria will always have an upper hand or its dominion over Israel and Judah. और मैं 9वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं, तकरीबन 100 साल पहले, यशायाह के 100 साल पहले की बात कर रहा हूं, और उस समय में सीरिया को हम नक्शे में देख सकते हैं कि वो काफी बड़ा है, विशाल है और सामर्थी है, और इस प्रकार कई बार समरिया के ऊपर या फिर उत्तरी राष्ट्र इजराइल के ऊपर और यहूदा के ऊपर वे चढ़ाव करते थे और अपनी ताकत को जताते थे। When you read in the Bible, these people of Syria are also called as Arameans. Arameans. हम पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं ये सीरियन वासियों को जो है अरामी लोगों के रूप में भी हम जानते हैं। Now, after the division of the kingdom, if you look at the book of Kings, you will see the Arameans always they were having some battle with Samaria, and especially after the time of Jehoshaphat, in the kingdom of Judah also, the Arameans or Syria, they were always, interfering, or they were infringing to the territory of Israel and Judah, and they were taking control of some cities, they were looting, exploiting, so because of Syria, Samaria and Jerusalem, or kingdom of Israel and kingdom of Judah, they were always struggling, and they were not able to come up politically or economically because of Syria. और राजाओं की किताब में हम पढ़ते हैं, विशेषकर यहोशाफात राजा की मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि सीरिया का राष्ट्र कई बार जो है उत्तरी देश इजराइल के ऊपर चढ़ाव करने की कोशिश करते हैं, अपनी सीमाओं को और अंदर की ओर ले आने की कोशिश करते हैं और फैलाने की कोशिश करते हैं, और उनके दबाव के कारण हम देखते हैं कि कई बार इजराइल के देश में वे आकर कई सारे धन दौलत को लूट कर चले जाते थे, जमीनों की कब्जा वे कर लेते थे, और इसीलिए आर्थिक और राजनीतिक तौर से वे कभी भी इजराइल का देश जो है ऊपर की ओर आ नहीं पाए। Okay, just keep in your mind, in the 9th century, that is about nearly 100 years before Isaiah, because of this Syria, people of Israel and people of Judah, they were not able to come up economically or politically. Just understand that. हम ये देखते हैं, ये बस आपके ध्यान में आप रखें, यशायाह से 100 साल पहले हम देखते हैं कि सीरिया का राष्ट्र काफी ताकतवर था, और क्योंकि उनके ताकत के कारण और उनके कामों के कारण हम इजराइल के राष्ट्र को और यहूदा के राष्ट्र को राजनीतिक और आर्थिक रूप से ऊपर आते हुए हम देखते हैं, क्योंकि वे हमेशा दबाए गए थे। Now you see the time change. It is 700 BC. I actually wanted, a little more earlier, like 750 BC, a map, but it was not available as I was searching. So I got one which belonged to 700 BC, which is, almost the end of 8th century. Of course, it also belonged to the time of Isaiah, because Sennacherib, you can see Sennacherib was the king of Assyria when Hezekiah was the king of Judah, and Isaiah was the prophet in Judah. So it is the time of Isaiah. So this map will give you a better idea of what was the situation in the time of Isaiah.
अब ये जो नक्शा है ये 700 ईसा पूर्व में बनाया पूर्व के जगहों को बताने वाला, स्थिति को बताने वाला एक नक्शा है। मैं 750 ईसा पूर्व के जगह को या फिर एक नक्शा को पाना चाहता था, लेकिन मैं उसे हासिल नहीं कर पाया। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये सनकरीब जब अश्शूरिया का राजा था, और उस समय में हम देखते हैं यशायाह भविष्यवक्ता को भविष्यवाणी करते हुए हम पाते हैं। उसी समय हिजकिय्याह जो है दक्षिण देश यहूदा का राजा भी है। तो उसी काल में आता एक नक्शा को मैं आपके सामने अब रख रहा हूं। Now you can see this line, this brown line, that is Ashurian Empire. Now in the previous, it was not, extended to this place, right? So you see, as years passed away, the Ashurian kingdom has extended. They have grown, they have become powerful. These all are, things that happened after Tiglath-Pileser III became the king of Assyria. So what they did, they first took control of this Aram or Syria, this Damascus. They took control of Aram, and later they also extended their control to Samaria or kingdom of Israel. Okay, so they have controlled Syria, and later they controlled Samaria, but Judah is still free. Judah is still independent. So, Judah is somehow, kept intact from, under the influence of Ashurian kingdom. हम पहले नक्शे में ये देखे थे कि असीरिया का राष्ट्र जो है या साम्राज्य वो अपने ही छोटे देश में सीमित थे, और सीरिया में या फिर हम इज़राइल में या फिर यहूदा में वो आते हुए हम नहीं पाते हैं। लेकिन इस नक्शे में हम ये पाते हैं कि तिग्लत वो राजा के बाद जो है ये संपूर्ण साम्राज्य बढ़ाया गया है, फैलाया गया है, उसके सीमाएं बढ़ाई गई हैं, और आराम देश या सीरिया के ऊपर कब्जा करने के बाद उत्तरी देश इज़राइल के ऊपर वे कब्जा करते हैं, समरिया के ऊपर वे कब्जा करते हैं, और वे अपनी ताकत को जता रहे हैं। लेकिन इस सारे संदर्भ में ही हम यहूदा देश को देखते हैं कि तब भी वो आजाद है, स्वतंत्र है, और असीरिया साम्राज्य की अधीनता में नहीं है। Very good. Okay, so since we are not going to talk about prophets who were prophesying in northern kingdom like Amos and Hosea, I'll just focus my discussion on what is happening in the south. और क्योंकि एमोस और होशिया के बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं, जो उत्तरी देश में सेवकाई कर रहे थे, इज़राइल में सेवकाई कर रहे थे, यहूदा में जो हो रहा उन बातों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। Okay, Isaiah was prophesying in Judah, and Isaiah was living in Jerusalem. You can see this black dot outside the Ashurian kingdom, right? So this black dot is Jerusalem. So Isaiah was living here in Jerusalem, and this kingdom of Judah, that was the ministry place of Isaiah. और हम यहूदा के देश को हम वहां पर देखते हैं। यहूदा का राजधानी जो यरूशलेम है उसे हम असीरियन साम्राज्य के सीमा रेखा के जरा बाहर एक काला बिंदु को देख सकते हैं। उस काले बिंदु के ऊपर हम यरूशलेम लिखा हुआ देखते हैं, वहां पर यशायाह सेवकाई कर रहा था। Now you see, if you read Isaiah chapter 1 verse 1, Isaiah chapter 1 verse 1, we will read there Isaiah was prophesying in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah. They were the kings of Judah. So Uzziah to Hezekiah is a long period. Isaiah was serving in Jerusalem as a prophet. हम इसके पहली आयत को जब हम पढ़ते हैं वहां पर हम मालूम कर पाते हैं कि कितने राजाओं के नीचे यशायाह या फिर उनके कालों में यशायाह भविष्यवाणी कर रहे थे। उजिया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह जो यहूदा के राजाएं हैं उनके नीचे ये उनके समय में सेवकाई कर रहे थे, काफी लंबा समय। Yeah, so beginning from Uzziah to Hezekiah, all through those periods, Isaiah is prophesying. And let us see what was the situation in these different kings. They all were not same. Uzziah and Ahaz and Hezekiah, the political context is bit changing. So we will try to even differentiate what was the context during the time of Uzziah and Jotham, and what was the context in the time of Ahaz, and what was the context in the time of Hezekiah.
और हम जो है ये जानते हैं उजिया से लेकर हिजकिया तक जो साम्राज्य है, राजाओं का बदलता हुआ काल है, उसमें कई प्रकार के राजनीतिक संदर्भ भी बदल गए थे, जो है स्थिति बदल गई थी। और हम ये देखेंगे प्रत्येक राजाओं के अधीनता में किस प्रकार का संदर्भ था, किस प्रकार का राजनीतिक माहौल था, और उसे समझते हुए उस संदर्भ को हम समझेंगे। So you should understand Isaiah was prophesying in a period of time where historical situations were changing. They were changing from one time to another time. So we will see what was the situation in different periods. और यशायाह उस समय में सेवकाई कर रहे थे जहां पर राजा जिस प्रकार बदलते जा रहे थे, उसी प्रकार राजनीतिक माहौल भी बदलते जा रहा था, संदर्भ बदलते जा रहे थे, और उस बदलते संदर्भ को हम समझने के प्रयास कर रहे हैं। Now, in the days of Uzziah and Jotham, that is the early part of 8th century. Okay, in the 8th century, the beginning part, that is Uzziah and Jotham. In that period of time, there was a good political independence. Let me explain it. Political independence means, Syria was always troubling them, isn't it? Syria was always coming for some kind of battle, some kind of exploitation, looting. And so because of that, they were going through a problem. But because Ashurian kingdom has taken Syria and even Israel is under them, now Judah, you see, there is a lot of independence. Ashurian empire for now, they have not, touched Judah, and Syria is not powerful. And so Judah gets a independence, and obviously it also grow economically. और हम सबसे पहले उसिया और योताम के समय के बारे में हम देखेंगे, और उनके बारे में ये बताया गया कि उनके समय में यहूदा देश में एक राजनीतिक आजादी था या स्वतंत्रता था। मैं इसके बारे में आपको समझाने की प्रयास करूंगा। हम देखते हैं कि सबसे पहले अशीरिया का साम्राज्य बढ़ने से पहले सीरिया के लोग कई बार हम इजराइल में और यहूदा में आते हुए उन्हें परेशान करते हुए देखते हैं, उन्हें लूटते हुए देखते हैं, राजनीतिक तौर से दबा कर रखते हुए हम देखते हैं, और इसीलिए वे ऊपर नहीं आ पा रहे थे। लेकिन असीरिया जो है, जब सीरिया के ऊपर अपना कब्जा जता लेता है और उत्तरी देश यानी इस्राएल भी उनके अधीनता में चला जाता है, तब दक्षिण देश यहूदा जो है स्वतंत्र हो जाता है, आजाद हो जाते हैं। अब उनके ऊपर दबाव आते हुए नहीं देखते हैं, और क्योंकि तब वे जो है एक स्वतंत्र देश के ऊपर रूप में बनाए गए हैं, आर्थिक रूप में भी वे ऊपर आते हुए हम पाते हैं। Very good. So that is the days of Uzziah and Jotham. Now let's talk about what happened in the time of Ahaz. What happened in the time of Ahaz? That's very interesting to know about. Now you see, Syria and Israel, they were under Assyria, and so they attempt a coalition. Which they come together to try to make a war against Assyria and having some deliverance. So they also asked Judah's participation, but Judah refuses. And so what happens? Syria and Israel, they come for a war against Judah, and Ahaz is in trouble, and Ahaz begin to ask help of Assyria. Now let me show it in the map. You see here Syria and Samaria, okay, Damascus and Samaria, or Syria and Israel, they are under Assyrian Empire. Now, under Assyrian Empire means they have to give tax, they have to give tribute, and it's a big economic oppression. Okay, so somehow they have to come out, isn't it? Somehow they have to get deliverance from this Assyrian Empire. So they were trying their best. And so what they did, they cannot do that by their own. So they made a coalition. Syria will join with Samaria, or Damascus and Samaria, or Syria and Israel, they make the force one. Earlier they were fighting, but now they became one because there is another enemy, isn't it? But still they are not confident because Assyria is so big. So what they do, they begin to call Judah. Now Ahaz was the king there. Okay, Uzziah and Jotham is gone. Ahaz is the king there. Now they call Ahaz to join them to fight against Assyria, because they may be saying, okay, now they have conquered us, next is you. So before they conquer you, let us all join together and somehow get a victory over Assyria. But Judah is so, thinking, like, Judah is thinking about what may happen. So Judah or Ahaz may be thinking it's not a good idea because Assyrians may defeat us and then I'll be Assyrians' enemy. But what happens when Judah doesn't involve with them, or Judah doesn't participate with them? They get angry with Judah. So instead of going against Assyrian kingdom,
they go against Judah for a war. Okay, so Syria and Samaria or Israel, they go for a war against Judah, and Judah, a small kingdom, becomes a panic. He ends up in panic. He don't know what to do, how to fight, and so what he does, Judah or Ahaz, he will just ask help from Ashurian kingdom to help him from the hands of Damascus and Samaria. I hope it was little long. I hope the translator can translate it. Yes, sir. हमने पहले उजिया और योताम के समय को देखा, अब हम जो है आहाज के समय में आ रहे हैं, और आहाज दक्षिण देश यहूदा का राजा बना हुआ है। और उस समय में हम देखते हैं कि असीरिया के या फिर अशूर के उस महासाम्राज्य की अधीनता में हम सीरिया और उत्तरी देश इज़राइल को पाते हैं। और क्योंकि वे दोनों ही अशूर के साम्राज्य की अधीनता में हैं, उन्हें अशूर के राजा को कर देना पड़ता है, उन्हें भेंट चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि और कर और भेंट चढ़ाना पड़ता है, कई प्रकार का आर्थिक दबाव उनके ऊपर आ जाता है और वे कमजोर हो रहे थे। और इस दबाव से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि सीरिया अकेला या फिर इजराइल अकेला अशूर के खिलाफ नहीं जा सकता, इसीलिए सीरिया, दमस्कस और समरिया के बीच में एक संगठन हो जाता है, राष्ट्रीय संगठन, और मित्रता में वे आ जाते हैं और वे अशूर के खिलाफ बलवा करते हुए अपने आप को आजाद करना चाहते हैं। लेकिन उस संगठन के बावजूद उन्हें यह लगने लगा कि उनका जो सेना है वो कमजोर पड़ सकता है, इसलिए दक्षिण देश यहूदा के पास वे जाते हैं और यहूदा राजा आहाज से जो है उनके संगठन में शामिल होने की निमंत्रण देते हैं। लेकिन अब ये राजा आहाज सोचने लगता है, यदि मैं अशूर राजा के खिलाफ जाऊं और यदि मैं हार जाऊं तो मैं उनका दुश्मन बन जाऊंगा, इस प्रकार हमारा अस्तित्व परेशानी में पड़ जाएगा। इसीलिए बेहतर होगा कि मैं इस प्रकार उत्तरी देश इजराइल और सीरिया के साथ मिलते हुए अशूर देश के खिलाफ ना जाऊं, और उनके संगठन का इनकार कर देते हैं। क्योंकि आहाज इनकार कर देता है, सीरिया और इजराइल के लोग अशूर के राजा के खिलाफ ना जाते हुए दक्षिण देश यहूदा राजा आहाज के खिलाफ आने की कोशिश करते हैं, और उस कोशिश के दौरान आहाज घबराए हुए पाते हैं, परेशान होते हुए पाते हैं, और उस संदर्भ में हम अभी की स्थिति को बढ़ते हुए पा रहे हैं। Thank you. Very good job. Now, you see, we will come back to it as I speak about what was Isaiah's contribution in this time. Now, Ahaz is in a crisis, which we call as Syro-Ephraimite crisis. So, in this crisis time, Isaiah, as a prophet, comes to Ahaz and gives message what to do. He doesn't know what to do. He is asking the help of Assyria. So, the prophet is bringing his own message. Let's look at it later. So, Isaiah's ministry will happen during the time of Ahaz, which we will be looking later. और इस प्रकार सीरिया और ये एफ्रेम के बीच में या फिर समरिया के देश के बीच में हुआ बंधन के बीच, और हम देखते हैं दक्षिण देश के ऊपर ये किस प्रकार का संघर्ष डाल रहा है। उस संघर्ष के दौरान आहाज परेशान हो रहा है और वहां पर यशायाह भविष्यवक्ता आते हुए परमेश्वर की भविष्यवाणी को सुना रहा है, लेकिन हम उस भविष्यवाणी में अब प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन उनके योगदान को हम बाद में देखेंगे। Now you see, the next is Hezekiah, isn't it? Now Ahaz's time is over, and then we see Hezekiah's time. Hezekiah's time, he also comes again in the Ashurian crisis. Now here probably we will have to understand now what happens. Ahaz asked the help of Assyria. So if you ask the help of Assyria, you have to submit before Assyria, isn't it? So you become the vassal of Assyria. Now, after Ahaz, Ahaz's son Hezekiah becomes king. So his father already submitted before Assyria as a servant. So obviously what happens? Hezekiah also should submit himself as a servant to Assyria. But what happened in the time of Hezekiah? Hezekiah became very powerful. We read in the Bible he was very successful. And so what he does, he stops paying the tax tribute to Assyria. So Assyria becomes very furious, and Assyria comes to attack Hezekiah. That is called Assyrian crisis. And now Hezekiah don't know what to do. So Isaiah comes again to guide Hezekiah. There we again see the ministry of Isaiah.
आहाज के समय में हमने ये देखा कि सीरिया और इजराइल मिलकर यहूदा देश के ऊपर चढ़ाव करने आते हैं और आहाज जाकर अशूर के राजा के सामने झुकता है और उसके मदद को मांगता है। और जब अशूर का राजा उन्हें मदद दे रहा हो तो ये जरूर संभव है कि आहाज को अपना सारा जो है जो हर प्रकार की बातों की श्रेय जो है उस अशूर के राजा को देना पड़ेगा और उसके अधीनता में चला जाना पड़ेगा। और इसीलिए यह संभव है कि उसके बेटा के समय में यानी हिजकिया के समय में भी अशूर राष्ट्र का नीचे हम यहूदा को पाते हैं, हिजकिया को पाते हैं। लेकिन हिजकिया जो है ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा सफल हो जाता है, उसका धन दौलत बढ़ जाता है, उसकी श्रेय बढ़ जाता है और इसीलिए वो अशूर के राजा को भेंट देने से इनकार कर देता है। Okay, so we'll come back to that, and that time I'll make it clear, more clearer to you. Now, coming to the socio-economic context and the religious context, you see there was political independence, and so it obviously brought great opportunity for economic prosperity for both Israel and Judah. For Judah, it brought economic prosperity. However, the economic prosperity did not apply to everybody. There was a socio-political uh, bureaucracy, the kings and his officials, and the people who were judges, and even some elite people who were money lenders, rich people. So there is a exploitative socio-political structure. Even like today, we have a nexus between business people and politicians, isn't it? So similarly, there is a nexus even there, and so that becomes more exploitative. And so though there is a prosperity, it ends up only benefiting a small group of people, and they exploit the poor people. And so you see there is a big gap. There is a big group of people who became extremely poor and slaves because of the exploitative structure in the economical situation. हम देखते हैं क्योंकि एशिया का संदर्भ में जो है उत्तरी देश और दक्षिण देश को आजादी था कई प्रकार का, हम देखते हैं उनके सामाजिक और आर्थिक संदर्भ पर एक बार हम गौर करेंगे। उनके राजनीतिक आजादी के कारण उनके जीवन में विभिन्न प्रकार के आर्थिक बढ़ोतरी और सफलता को हम दोनों ने ही, इजराइल ने ही और यहूदा ने भी हासिल को किया। लेकिन हम देखते हैं सामाजिक राजनीतिक स्तर पर राजाओं के बीच में और व्यापारियों के बीच में यानी वो अधिकारी वर्ग के बीच में एक संगठन पैदा हो जाता है, मित्रता पैदा हो जाता है और उच्च श्रेणी के व्यापारी जिनके पास धन है वे अपने आप को अधिक ताकतवर पाए और अपने ताकत को जता पाए। लेकिन जो गरीब वर्ग के लोग हैं वे अपने आप को वंचित होते हुए देख रहे हैं, दूर होते हुए देखते हैं, किनारे किए हुए देखते हैं और इस प्रकार के एक भ्रष्टाचार को वहां पर पैदा होते हुए अमीर वर्ग और गरीब वर्ग के बीच में एक बहुत बड़े दरार को उत्पन्न होते हुए हम पा रहे हैं। Very good. And in the religious context, what happens is the religious activities becomes more external and ritual. There were a lot of people who were rich. They come to the temple, they can give whatever sacrifices, offerings. They bring a lot of, tithes or whatever, offerings, like, they bring big presents to God and make a big ritual worship. But they were not having the essential of spirituality, like practicing good or showing compassion, love, righteousness, justice. Those kind of things were not there, but just external worship was happening. और यदि उस समय के हम धार्मिक संदर्भ पर गौर करें तो उस समय में जो धार्मिक क्रिया है वो बहुत ही बाहरी और रीति रिवाजों से भरा हुआ बातों को ही हम देखते हैं। यदि हम धार्मिक बातें करें तो कई सारे रीति रिवाजों को वे जरूर करते हैं, बाहर जाते हुए भेंट को चढ़ाते हैं, बड़े बड़े बलिदानों को वे करते हैं बाहरी रूप से अपनी भक्ति को प्रकट करने के लिए। लेकिन अंदर जो आत्मिकता का सार है यानी न्याय करना, यानी प्रेम करना, यानी लोगों के सामने दया दिखाना, गरीबों को याद करना, ये सारे जो आत्मिकता का सार है वो उनके अंदर से गायब हो चुका था, वो बाहरी बंद हो चुका था। So it was like a hypocritical religion. They were just practicing hypocrisy. And not only that, there was more syncretistic religious practices, like, they worship Yahweh, and they also worship Baal. They also worship the Ashurian gods, like God called Melkam or Molech.
they worshipped any gods they wanted. They had different shrines, high places. Now Jerusalem, they had the temple for Yahweh, but they also had many temples for different gods. और उनकी आराधना केवल ढोंग का आराधना ही नहीं था, लेकिन साथ ही साथ एक मिलावटी आराधना भी था, जहां पर वे केवल यहोवा का ही नहीं लेकिन अन्य पराये देवताओं को भी आराधना करना वे शुरू कर दिए थे। वे बाल की आराधना करते थे, अशूर देवता की आराधना करते थे, मोलेक की वे आराधना करते थे, इत्यादि देवताओं के सामने दंडवत करते हुए एक मिलावटी आराधना में अपने आप को दे चुके थे। Now, you see, in spite of all these things, there is one good thing in the religious scenario. That is, during the time of Hezekiah, he leads a revival where he calls all the people to only worship Yahweh, and he destroy all the idol worship. So there is a revival during the time of Hezekiah. लेकिन ये सारी परेशानी भरे हुए संदर्भ में हम देखते हैं हिजकिय्याह के राज्य के दौरान एक बेदारी संपूर्ण देश में जाग जाता है, जहां पर वो सारे मूर्ति पूजा को बंद कर देता है, वहां पर मूर्तियों को तोड़ देता है, लेकिन यहोवा की ओर अपने ध्यान को आकर्षित करते हुए लोगों के अंदर एक सुधारवाद को पैदा कर देता है, बेदारी को वो पैदा कर देता है। Now, that is all about the historical background. I was talking about the political, religious, social, economic situations in the time of Isaiah. और ये जो है हमारा वहाँ का संदर्भ है, वहाँ की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक संदर्भों को मैं आपके सामने रख रहा था। Now, this becomes very meaningful when you begin to read the chapters, when we begin to see the messages in the book of Isaiah. और ये सारे ही संदर्भ हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम प्रत्येक अध्यायों को देखते हैं और उसकी परिस्थिति समझने की कोशिश कर रहे हैं। Now let's focus to the book of Isaiah. Now, see, the book of Isaiah is the largest book in the prophetical books. It has 66 chapters, और very हम big book, and it covers a extensive historical period. और हम देखते हैं सारे भविष्यवक्ताओं के किताब में सबसे लंबा या सबसे बड़ा जो किताब है वो यशायाह का किताब है, और यहाँ पर हम 66 अध्यायों को हम पाते हैं और बहुत बड़े ऐतिहासिक समय का काल का वर्णन हम यहाँ पर देखते हैं। There is a very surprising thing in the book of Isaiah. और हमें आश्चर्यचकित करने वाली एक विशेषता को भी यहाँ पर हम पाते हैं। Now, in these 66 books, if you make some kind of division, you can divide it as chapters 1 to 39, and then chapters 40 to 55, and then chapter 56 to 66. और यदि हम इन 66 किताबों को किसी प्रकार की विभाजन में लेकर आना चाहते हैं तो हम उसे 1 से लेकर 29 अध्यायों में पहला भाग को देखते हैं, 40 से लेकर 55 तक दूसरे विभाग को देखते हैं, और 56 से लेकर 66 तक तीसरे भाग को हम देखते हैं। Now, if you see this 1 to 39, we can see that all the chapters, they relate to the historical context that was, relating to the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, Hezekiah. I was talking about all that background. Now, 1 to 39 belong to that background, which is in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, and that was before the exile. और 1 से लेकर 39वें अध्याय तक की यदि हम विषय वस्तु को देखें, भविष्यवाणियों को देखें, तो उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम उन 4 राजाओं को देखते हैं जिसके बारे में मैंने पहले कहा था। उजिया राजा को हम देखते हैं, योताम को हम देखते हैं, आहाज को देखते हैं, हिजकिय्याह को हम देखते हैं। ये सारे 4 राजाओं जिसके नाम मैंने यहाँ पर लिया है, उनके संदर्भ में, उनके इतिहास में, उनके काल में, उनके राज्य में जो है ये भविष्यवाणी किया गया है। Now, you see, when you studied in the book of Kings, you have probably come across Nebuchadnezzar taking the people of Judah into captivity. और यदि आप जो है इस किताब को देखते हैं, हम नेबुकदनेस्सर को देखते हैं जहां पर यहूदा के लोगों को वो बंदुआई में ले जा रहा है। If you read 2 Kings chapter 25, you will see that Nebuchadnezzar, he comes, he destroys the Jerusalem temple, and he kills the king, and he takes all the people to captivity. That happened in 586 BC.
और हम ये देखते हैं जब राजाओं की किताब पर हम उनकी इसके विवरण को पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा बाबिलोन से आता है, यहूदा पर चढ़ाव करता है, यरूशलेम के मंदिर को वो ढा कर देता है, बाकी निवासियों को लेकर वो वापस बंधुआई में चले जाता है, बंदी बना देता है। और ये सारी इतिहास जो है हम छठवीं जो शताब्दी है 586 में हम होते हुए देखते हैं। Now, this chapters 1 to 39, it belongs to, whatever happened before the exile. It more relates to the time of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah. और 1 से लेकर 39 अध्याय में जो भी घटनाओं को हम देख रहे हैं, जो भी भविष्यवाणियों को हम देख रहे हैं, वो हम देखते हैं कि बंधुआई से काफी समय पहले हुआ था और वहां पर ये 4 राजाओं की राज्यों को भी हम देखते हैं। But if you read chapter 40 to 55, when you read chapter 40 to 55, you will see that relates to a historical situation where the people are already in exile. And when the people are already in exile, the prophet is giving them a hope that they will go back to Jerusalem or there will be a return. So there is a hope given to those people who are already in the captivity. लेकिन 40 से लेकर 55 तक यदि उस अध्यायों के भविष्यवाणियों को यदि हम पढ़े, वहां पर हमें ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि खड़ा होते हुए हम देखेंगे, परिस्थिति खड़ा होते हुए हम देखेंगे, जहां पर मानो वो भविष्यवक्ता पहले ही जो लोग बंधुआई में हैं उनसे भविष्यवाणी कर रहा हो और उनकी भविष्यवाणी करते हुए कह रहा है कि तुम ये बंधुआई से निकलकर तुम्हें पुनर्स्थापित किया जाएगा, वापस अपने जमीन में लौटे जाएंगे। और इस प्रकार बंधुआई में पड़े हुए लोगों से भविष्यवाणी कर रहा एक संदेश को हम पाते हैं। In 1 to 39, the language is more judgment, that you are sinful and so judgment is going to come, you will go to captivity, all those things. But when chapters 40 to 55, it is more of comfort, consolation, hope. You will return, you will have a return, you will go back to your own kingdom. That is what you will see. 1 से 39 तक के अध्यायों को यदि हम देखेंगे, वहां पर न्याय की भाषा को हम देखते हैं, दोषारोप लगाते हुए हम देखते हैं, दंड की भाषा इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं। लेकिन जब हम 40 से लेकर 55 तक के अध्यायों को देखते हैं, वहां पर आराम के और उन्हें सांत्वना देने वाले, उन्हें सराहने वाले, उन्हें विश्राम देने वाले, पुनर्स्थापित करने वाले अच्छे बातों को करते हुए, आशा देने वाले बातों को करते हुए हम देखते हैं। Very good. Now, in chapters 56 to 66, you will see already the people have come back. They are in Palestine or they are in Jerusalem and they are already rebuilding. And in the process of rebuilding, there are again people who begin to forget Yahweh and they commit sin. And some people are righteous. And in the rebuilding process, there is more difficulties. And in that situation, there is a lot of message, how to structure again, how to rebuild again. So that is the context you will see in 56 to 66. लेकिन 55 से लेकर हम 66 तक के अध्यायों को जब हम देखते हैं, वहां पर उस समुदाय से बात किया जा रहा है जहां पे लोग बंधुआई से होकर वापस लौट चुके हैं। वे अब बंदी नहीं हैं, लेकिन यरूशलेम का मंदिर जो ढा हो चुका था उसका पुनर्निर्माण में जुड़े हुए हैं। लेकिन पुनर्निर्माण करते करते आलसपन के कारण हटे हुए हैं, वे निर्माण रुक गए हुए हैं। इस प्रकार की भावना को वहां पर हम देखते हैं और वहां पर उन्हें यह समझाया जा रहा है कि किस प्रकार यरूशलेम के मंदिर का निर्माण करना चाहिए, इमारत किस प्रकार होना चाहिए। ये सारी बातों को आशा देते हुए, समझाते हुए हम उन अध्याय में देख रहे हैं। Now, from a historical point of view, you see whatever written in 40 to 66, you will see it is much later than the period of Isaiah. If you know Isaiah lives in 8th century. But when you read 45 to 66, they belong to a historical situation which belong to 7th and 6th century BC. और हम यदि 40 से लेकर 66 तक के अध्यायों को पढ़ते हैं और उसके विषय वस्तु और भविष्यवाणियों को यदि हम पढ़ते हैं, तो वो यशायाह भविष्यवक्ता के जीवन काल की बहुत बात हुआ एक भविष्यवाणी और इतिहास को हम वहां पर देखते हैं। और यशायाह जो है 8वीं शताब्दी में भविष्यवाणी कर रहा था, लेकिन ये घटना जो है 7वीं शताब्दी के अंत में और 6वीं शताब्दी की शुरुआत में हो रहा घटनाओं के वर्णन को वहां पर बताया गया है। तो काफी अंतर है ये दोनों काल के बीच।
Okay, that's a very big complexity, isn't it? Now, how do you understand this 1 to 39 being in the time of Isaiah and 40 to 66 sometime belonging much later than the time of Isaiah? How do we understand this? So let me talk about some views on these three distinct historical scenarios for the book of Isaiah. और ये बहुत ही पेचीदा या फिर बहुत ही मुश्किल परिस्थिति हमें लगता होगा, जहां पर हम देखते हैं कि यशायाह का जीवन काल जो है 1 से लेकर 29वें अध्याय तक की 39वें अध्याय तक ही सीमित है, लेकिन आगे 40 से लेकर जो 66 तक के अध्याय की भविष्यवाणी है वो उनके जीवन काल के काफी साल बाद आ रहा है। तो इसका कैसा सुझाव हम करें, कैसे समाधान को हम पाए, इस पर हम देखेंगे और कई सारे राय दिया गया है, उस राय को हम देखेंगे। Now we have many Jewish rabbinic writings which talks about this. और हम देखते हैं कई सारे यहूदी रब्बियों के लेख को हम देखते हैं, जहां पर इन्होंने इस बातों पर टिप्पणी दिया है, बातों को बताया है। Now there are a lot of rabbinic writings, which talks about what the Jewish people believe. They believe that all these chapters, even chapter 40 to 66, they are written by Isaiah himself from a prophetical spirit. He was just putting himself to that different context and he was prophetically writing it. और वो सारे यहूदी रब्बियों के लेख में हम ये पाते हैं, उनके परंपरा का ये विश्वास रहा है और ये संपूर्ण इज़राइल का भी विश्वास रहा है कि उस समय में जब ये लिख रहे थे वो यशायाह स्वयं ही थे जिन्होंने ये संपूर्ण 66 किताब का 66 अध्याय का लेखन किया है, और वो भविष्यवक्ता की आत्मा में जो है उस परिस्थिति में अपने आप को रखकर संदर्भ में रखते हुए उन बातों को देखकर भविष्यवाणी कर रहे थे। Okay, now even as a Christian community, from a conservative point of view, we also believe that all these things are written by Isaiah, who lived in Jerusalem, from a prophetical spirit. और हम भी जो मसीहत में है, जो पारंपरिक विश्वास को रखते हैं, हम भी यही मानते हैं कि यशायाह जो यरूशलेम में रहता था, उसी व्यक्ति ने भविष्यवक्ता की आत्मा में जो है इसे देखकर लिखा है। However, those who study the book of Isaiah, they have divided the chapters 1 to 39 as first Isaiah, and have called him as Isaiah of Jerusalem, and then chapters 55 as second Isaiah, as Isaiah of Babylon. Someone in Babylonia is talking to the people who were in captivity, and chapter 56 to 66 is in a Palestinian context, and they call him as third Isaiah. लेकिन इस किताब के अध्ययन जो कर रहे हैं, जो विद्वान हैं, इसे 3 भागों में बांटते हैं और 1 से लेकर 39 अध्याय लिखे हुए भविष्यवक्ता का नाम जो है पहला यशायाह दिया गया है, या फिर यरूशलेम वासी यशायाह उन्हें बुलाते हैं। 40 से लेकर 55 अध्याय जिन्होंने लिखा उसे दूसरा यशायाह कहा गया है, या फिर बाबिलोन वासी यशायाह कहा गया है, जो बाबिलोन में उस समय था और उस परिस्थिति में इन भविष्यवाणियों को लिख रहे थे। और 56 से लेकर 66 अध्याय जिन्होंने लिखा उसे तीसरा यशायाह का नाम दिया गया है। Okay, so we can understand it in this way that Isaiah, as a prophet, perhaps had a group of disciples who believed in Isaiah's and Isaiah's oracles. So there is a tradition, that follows after the time of Isaiah, who believed the words of Isaiah. Now, in his background, there were again prophets who were probably his disciples, and they, prophesied even in Babylonian or in the post-exilic context, and they added it to the words of Isaiah, and probably this Isaiah of Jerusalem was their master, or their their master. और एक और राय जो लोगों ने दिया है वो ये है, और ये सब संभव है
कि जो यशायाह यरूशलेम वासी है और जो 8वीं शताब्दी में भविष्यवाणी कर रहे थे, उनका अनेक चेले थे, अनेक शिष्य थे, जो स्वयं भविष्यवाणी कर रहे थे और यशायाह के उस परंपरा को बढ़ाते हुए वे अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाते गए और जब बाबिलोन की बंधुआई में थे, वहाँ पर भी ये जो है भविष्यवाणी कर रहे थे, वहाँ पर अपने भविष्यवाणी को कहते गए और यशायाह जो 8वीं शताब्दी का है, जिन्होंने ये 39 अध्याय को लिखा, उन्हीं के साथ और अध्यायों को जोड़कर भविष्यवाणियों को जोड़कर लिखते गए और उनके संदर्भ के लोगों को परमेश्वर की बातें बताते गए। From a canonical point of view, we just understand it as the words of Isaiah. So maybe we will conservatively take it as the words of Isaiah, which are prophetically written. पवित्र शास्त्र के दृष्टिकोण से जो है हम ये विश्वास करते हैं कि ये यशायाह के द्वारा कहा गया वो भविष्यवाणी है और संप्रदाय और परंपरा ने हमें जो बताया है उसके अनुसार ही हम आगे बढ़ेंगे और विश्वास करेंगे कि एक व्यक्ति ने लिखा है। Okay, now let's coming to the message of Isaiah. अब हम यशायाह की समाचार की ओर आएंगे। Now, for today, we will be only focusing on 1 to 39, and tomorrow we will be looking from 40 to 66. आज हम जो है 1 से लेकर 39 अध्याय तक गौर करेंगे और कल 40 से लेकर 66 तक। So I have put it here like Isaiah of Jerusalem. So we will look at how Isaiah prophesied from the days of Uzziah to Hezekiah and what were his messages. मैं यहाँ पर इसका जो शीर्षक है यरूशलेम वासी यशायाह इस प्रकार दिया है और हम देखेंगे किस प्रकार उजिया से लेकर हिजकिय्याह तक के काल में यशायाह अपने भविष्यवाणी की सेवकाई को निभाते गए। Now we will study it looking at message of Isaiah in the days of Uzziah and Jotham, and then we will look at Isaiah's message in the days of Ahaz, and then we will look at Isaiah's message in the time of Hezekiah. हम इसे 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले उसिया और योताम के समय में यशायाह का संदेश, उसके बाद आहाज के समय में यशायाह का संदेश और उसके बाद हिजकिय्याह के समय में यशायाह का संदेश। Okay, so if you read chapter 6 of Isaiah, you will see the call and commission of Isaiah. We read of a special experience that Isaiah goes through, and God calls him and he submits himself to the call of God. और यदि इसके 6वें अध्याय पर हम आते हैं और गौर करते हैं, वहां पर हम यशायाह के बुलाहट को पाते हैं, किस प्रकार परमेश्वर उसे बुलाकर निर्देशित कर रहा है, महान आदेश देते हुए भेज रहा है और उस प्रकार के संदर्भ को वहां पर हम देखते हैं। So we read, his call in the year of the death of Uzziah, and with all that heavenly vision, you can read of his call like this. I have just put up some references here. He says, and he said, go and say to these people, the cities will lay waste without inhabitant, and the houses without men, and the land is utterly desolate, and the Lord removes men far away, and the forsaken places are many in the midst of the land. Okay, I have just combined a lot of references there, which simply says, God is telling Isaiah to go and prophesy that the cities of Jerusalem or kingdom of Judah will lay waste and the people will be carried out as captivity. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस वर्ष उजिया राजा मरा, वहां पर वो खुला हुआ स्वर्ग को देखता है और महान दर्शन को वो पा रहा है और उस दर्शन के अंदर यशायाह के बुलाहट को पाते हुए हम देखते हैं और वहां पर परमेश्वर से निर्देशित करते हुए लोगों के बीच भेज कर ये कह रहा है कि दक्षिण देश यहूदा जो है उनके ऊपर महान विपत्ति आएगी, वे बंधुआई में चले जाएंगे, इस प्रकार परेशानी में वे चले जाएंगे। So it's simply, God is calling him to go and proclaim to Jerusalem or go and proclaim to the kingdom of Judah that God's judgment is going to come, repent, or otherwise there is going to be a great destruction to kingdom of Judah. और यहाँ पर परमेश्वर उसे बुलाकर ये कह रहा है कि तुम यरूशलेम से जाकर यहूदा वासियों से जाकर तुम ये कहो कि परमेश्वर का महाकोप या दंड जो है उनके ऊपर आने वाला है और इसीलिए अपने आप को बचाए, और जो है इस प्रकार की भविष्यवाणी उनके ऊपर देते हुए हम पाते हैं। Now, though we read this call in chapter 6, we can see from chapters 1 to 5 itself, already there has been prophecies of Isaiah. So, prophecies of Isaiah begins from chapter 1 itself, going to up to chapter 5, even before his call.
और उनकी बुलाहट भले ही 6वें अध्याय में हो रहा है, 1 से 5 अध्याय में उनकी भविष्यवाणी को हम पहले ही देख रहे हैं, भविष्यवाणी करते हुए हम पा रहे हैं और इस प्रकार बुलाहट से पहले ही भविष्यवाणी की सेवकाई वे करते हुए हम पाते हैं। Now, what is the message Isaiah is bringing in the days of Uzziah and Jotham? There are three important things. Number one, idolatry. People are worshiping idols. And number two, people are doing injustice, violence, and oppression against the poor. As I told you about this exploitative structure. Number three, there is a false worship and religiosity. There's the three important message that Isaiah brings to the people of Jerusalem or the people of Judah. और यहाँ पर हम 3 मुख्य संदेश को देखते हैं जो यशायाह भविष्यवक्ता उसिया और योताम के समय में यहूदा वासियों के पास लेकर आ रहा है। सबसे पहले मूर्ति पूजा के खिलाफ संदेश को वो लेकर आता है। दूसरा, वो अन्याय के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ और गरीबों के दबाव के खिलाफ संदेश को लेकर आता है। और तीसरा, झूठी आराधना और भक्ति के खिलाफ वो संदेश को लेकर आता है। Very good. Now, our time is so less, so we cannot go through all the references, but I have just selected few very important references for you to see how Isaiah speaks to the people. और क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, मैं सारी आयतों को तो आपको बता नहीं सकता हूँ, इसीलिए मैं चंद आयतों को आपके सामने लिखा हूँ। इससे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का संदेश यशायाह लेकर आ रहा था। In regard with idolatry, you can read, Isaiah 1:21, it says, how is the faithful city become an harlot? Harlot means, it has started prostituting, means leaving Yahweh, it has gone worshiping other gods. So it has become unfaithful, disloyal to Yahweh. And chapter 2, verse 7, you see the land or Jerusalem is full of idols. They worship the work of their own hands that with their own fingers have made. So, there are a lot of things that Isaiah speaks to the people about, how they have started worshiping the idols. और हम 1 के 21 में हम ये देखते हैं कि किस प्रकार एक विश्वास योग्य नगर जो है व्यभिचारी बन गई थी। और उस संदेश में यशायाह कह रहा है कि तुम सबसे पहले अपने विश्वास योग्यता को केवल यहोवा के साथ रखे हुए थे, लेकिन विश्वासघात करते हुए तुम यहोवा से दूर हो गए और अन्य देवताओं की सेवा करने गए। इस प्रकार एक आत्मिक व्यभिचार तुम कर रहे हो। और 2 के 7 में वापस एक संदेश दे रहा है कि तुम्हारा जमीन सब कुछ तुम्हारे हाथों के बनाए हुए मूर्तियों से भरा हुआ है, तुम्हारे उंगलियों की रचना के सामने तुम दंडवत कर रहे हो। Now the second message is this injustice and violence and oppression against the poor. I told you in the historical background that when the Judah experienced a political independence, when Assyria conquered Syria, all these gave a prosperity to the land of Jerusalem, but that all was used by a so-called elite and bureaucratic class who were using their power and money to exploit the poor. And so you see the verses like, you put away your evil doings, you make yourself clean, put away the evil things that you are doing. And in chapter 3 verse 14 it says, you have eaten up what you have eaten up, the spoil of the poor is in your houses, you have taken all the wealth of the poor people by cheating them. And chapter 5 verse 8 it says, woe to you that join house to house and lay field to field. It is talking about you have a house but you covet another person's house and you make your own devices and schemes and you somehow loot his house. Or you have your own property but you covet another one's property and you make your own schemes and you take hold of another man's property. Now all talks about their evil schemes against the poor people. और हम दूसरा संदेश उस संदर्भ में आते हुए देख रहे हैं जहां पर सीरिया का साम्राज्य सीरिया के ऊपर चढ़ाव कर रहे हैं और इस कारण से दक्षिण देश को आजादी मिल जाता है। लेकिन उस आजादी में एक आर्थिक बढ़ोतरी होते हुए हम पाते हैं, ऊंचाई पाते हुए हम देखते हैं। लेकिन ये आर्थिक ऊंचाई और समृद्धि जो है केवल ऊंचे दर्जे लोगों के पास ही हम देखते हैं, उनमें ही सीमित होते हुए हम देख रहे हैं। उस अधिकार वर्ग के पास ही, व्यापारियों के पास ही सीमित होते हुए हम देख रहे हैं और गरीबों के
पास केवल अन्याय, हिंसा और अनेक प्रकार के दबाव आते हुए हम देख रहे हैं। और इस प्रकार के एक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध यशायाह अपने शब्द को ऊंचा करते हुए 1:16 में ये कह रहा है कि तुम अपने हाथों को धोकर शुद्ध करे और अपने आप को बुराई से दूर रखे। 3:14 में वो ये कह रहा है कि तुम गरीबों के घर को लूट कर अपना घर भर रहे हो। और 5:8 में वो कह रहा है कि तुम अपने घर होने के बावजूद दूसरों के घर में जाकर लूटपाट कर रहे हो, दूसरों के घर को तुम डाक कर रहे हो। इस प्रकार अन्याय तुम्हारे हाथों में है और उस अन्याय से दूर हो जाओ। इस प्रकार का संदेश यशायाह यहूदा की निवासियों से कह रहा है। Now you see the third message that we see is false worship and religiosity. These people who loot the poor people and do all kind of violence and injustice, they come to the temple. They come to the temple with a lot of things, they bring to the Lord as sacrifices. They bring bulls, they bring, gold and silver, they bring many gifts to God. So their question is, to what purpose is the multitude of your sacrifice to me? Why are you bringing all this sacrifice? Your new moons, your feast, your worship, I hate. Because you first learn how to do well, or how to do good, or seek justice. You relieve the oppressed. You judge the fatherless and plead for the widow. You commit all this injustice, and then you come and worship. I don't want your worship. So we see that God completely condemns a hypocrisy and a false worship and religiosity. और तीसरा जो संदेश यशायाह इस्राएल के खिलाफ या फिर यहूदा वासियों के खिलाफ लेकर आ रहा है, वो उनके झूठे आराधना और झूठे धार्मिकता के खिलाफ वो लेकर आता है, जहां पर वो जो है बाहरी रूप से भेंट चढ़ाने में, बलिदान चढ़ाने में तो बड़े रुचि को रखते थे। अनेक प्रकार की बातों को वे, वस्तुओं को वे यहोवा के सामने लेकर आते थे, बाहरी रूप से तो वे आराधना करते थे। लेकिन परमेश्वर ये सवाल कर रहा है, तुम ये सब क्यों लेकर आ रहे हो? 1:11 में वो सवाल करता है कि तुम्हारा ये सब आराधना और बलिदान का मकसद क्या है? और 1:14 में ये सवाल करता है, तुम्हारे नए चांद और तुम्हारे नियुक्त पर्व को जो है मैं नफरत करता हूं। और उसके बाद 1:17 में वो कह रहा है, भलाई करना सीखो, तुम न्याय करना सीखो, जो विधवा है, जिनके पास पिता नहीं है, उनके साथ अच्छाई से व्यवहार करना सीखो, उसी में सच्ची आराधना छुपा हुआ है। Now you read this message even in the preaching of Jesus in the Gospels, isn't it? In the Sermon on the Mount, he talks against the hypocrisy, isn't it? So the New Testament message you will also see here. The worship is not just some external activities, but the worship is how you will become a person who can love, who can show mercy, who can be truthful. So the worship is not just in the temple. The worship should also happen in the marketplace. और हम यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेशों में और अन्य संदेशों में भी इस प्रकार का एक भावना और समाचार, जहां पर सामाजिक एकता के बारे में वो बात करते हुए हम पाते हैं। और वो कहते हैं कि तुम्हारी आराधना केवल बाहरी रूप में ही सीमित नहीं रहना चाहिए, लेकिन वो आराधना तुम्हारे न्याय में, तुम्हारे अच्छे व्यवहार में वो दिखना चाहिए, बाजारों में वो दिखना चाहिए, और न्याय से पेश आने में तुम्हारी आराधना की मूल्य दिखना चाहिए। Now, what is the judgment? What is the verdict? Now, because of all these things, Isaiah brings the word of the Lord, saying in chapter 5, verse 13, therefore my people are going into captivity. They are going into exile. They are going into captivity. And it says the Lord removes men far away. God will take the men far away, and the places will be forsaken. And it indeed happened. Indeed happened when the people were taken to Babylonia as captivity. It indeed happened when Nebuchadnezzar destroyed Jerusalem. So that was the judgment and the verdict that was proclaimed much advanced, much earlier by Isaiah. और ये सारी बुराइयों के सामने परमेश्वर का फैसला क्या है, परमेश्वर का दंडारोप क्या है? 5:13 में यशायाह ये कहते हुए देखते हैं, क्योंकि इस कारण से मेरे लोग बंधुआई में चले जाएंगे, मेरे लोग जो है अन्य जातियों के पास एक पराये देश में चले जाएंगे। और इस प्रकार का एक दंड का फैसला उनको सुनाए हुए हम देखते हैं। और ये जो भविष्यवाणी है बाबिलोन के काल में पूरा होते हुए हम देखते हैं, जहां पर यहूदा के लोग बंधुआई में चले जाते हैं।
Okay, now coming to Ahaz. Now we were talking about what was the words of Isaiah in the days of Uzziah and Jotham. Now we'll come to the time of Ahaz. हमने सबसे पहले देखा कि उजिया और योताम के समय में यशायाह का समाचार क्या था। अब हम देखेंगे आहाज के समय में यशायाह का समाचार क्या था। Now you see all the messages that I said about in regard with the time of Uzziah and Jotham. In fact, it continues in the time of Ahaz. The people were idolating, idol worshipping, and the people were doing all injustice and violence, and false religiosity was there. And in fact, that continues even in the days of Ahaz. और जिस संदेश को हमने सबसे पहले यूजिया और योताम के समय में देखा, उसी संदेश को आहाज के समय में भी दोहराते हुए, जारी रहते हुए हम देखते हैं। वहां पर भी लोग मूर्ति पूजा को करते थे, वहां पे सामाजिक भ्रष्टाचार को होते हुए हम देख रहे हैं, झूठी आराधना और धार्मिकता को वहां पर हम देख रहे हैं। उसके खिलाफ यशायाह तब भी बात कर रहा था। Now, I want to talk about a specific, ministry of Isaiah to Ahaz in a political crisis. और राजनीतिक संघर्ष के दौरान आहाज के समय में एक विशेष सेवकाई के साथ यशायाह प्रकट होता है। That is called Syro-Ephraimite crisis, which we had already looked at when we were talking about the background. और जब हम पृष्ठभूमि को देख रहे थे, सीरिया और उत्तरी देश इजराइल के बीच में हो रहा संगठन के कारण जो संघर्ष खड़ा हुआ, उसके संदर्भ में ये सेवकाई उभर कर आ रहा है। So here Syro means Syria or Aram, or Ephraim is another word for Israel. So Syria and Israel is bringing a crisis to the kingdom of Judah. और यहाँ पर जो अंग्रेजी में लिखा गया है साइरो एफ्रामाइट, उसका अर्थ ये है सीरियन देश और इजराइल के देश। एफ्रामी ये जो है दूसरा नाम है इजराइल के लिए, और वहां पर सीरिया के लोग और हम उत्तरी देश इजराइल के लोग मिलकर यहूदा के ऊपर संघर्ष लेकर आ रहा है। उस संघर्ष को यहाँ पर देखते हैं। Now we had already seen in the background, Syria and Israel, they were under the hands of Assyria, and they were paying tribute, and say they wanted somehow to come out of this oppression from Assyria. So they were trying to somehow fight back, and they knew they were powerless. So they were asking help from Ahaz or Judah to join them in their army to fight against Assyria. और हमने देखा कि सीरिया के देश और उत्तरी देश इजराइल जो है, क्योंकि अशूर साम्राज्य की अधीनता में थे, उन्हें निरंतर उन्हें कर चुकाना पड़ता था, आर्थिक भेंट देना पड़ता था, और इसीलिए ये जब परेशान हो गए, उनके खिलाफ बलवा करने के लिए सीरिया और उत्तरी देश इजराइल जो है एक संगठन में आ जाते हैं। तब भी उनका संगठन कमजोर पड़ने के कारण वह दक्षिण देश यहूदा के पास जाता है उनके संगठन में मिलकर आने के लिए, लेकिन वहां पर हम देखते हैं आहाज इनकार कर रहा है। Now Ahaz did not agree with them, because Ahaz knew it is very dangerous to make Tiglath-Pileser his enemy, because Tiglath-Pileser was a very, very powerful king and warrior, and to make Tiglath-Pileser an enemy was a dangerous thing. So Ahaz simply withdraw from joining the coalition. But what happened? Israel and Syria, they got angry with Ahaz, and so instead of going against Assyria, they come against Ahaz. और आहाज जो है जानता था यदि तिग्लत पिलेसर जो अशूर साम्राज्य का सम्राट है उसके खिलाफ जाए तो वो बहुत ही सामर्थी राजा ही नहीं लेकिन बहुत ही सामर्थी योद्धा भी है और वो हार जाएगा। इसीलिए वो उस संगठन से जो सीरिया और इजराइल लेकर आए थे वो पीछे मुड़ जाता है, और इस पीछे मुड़ जाने के कारण सीरिया और इजराइल के देश यहूदा के खिलाफ हो जाते हैं। Now, you see, Ahaz, kingdom of Judah, was a small kingdom, and so even Syria and Israel coming against them was a huge thing. So what happens? Ahaz is in a problem, and Ahaz is sending messengers. I have given here a reference, 2 Kings chapter 16 verse 7. The whole historical background you can see in chapter 16, but I have just just written one verse here. So Ahaz sent messengers to Tiglath-Pileser, king of Assyria, saying, I am your servant. Come up and save me out of the hand of the king of Syria and also the king of Israel. Now he is asking help from Assyria.
और यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि यहूदा बहुत ही एक छोटा राष्ट्र है और सीरिया के देश और इज़राइल के देश जब मिलकर उनके ऊपर चढ़ाव करने आए तो बहुत ही कमजोर पड़ जाएंगे और आहाज अपने आप को बहुत ही परेशान पा रहा है। और इस संदर्भ में वो तिग्लत पिलेसर के पास एक खबर भेजता है और उस खबर के बारे में जो है हम दूसरे राजाओं के किताब 16 के 5 से लेकर 10 में हम पढ़ते हैं, लेकिन 16 के 7 में इस प्रकार लिखा गया है। जो संदेश वो भेज रहा है इस प्रकार है, मुझे अपना दास बना वरन बेटा जानकर चढ़ाई कर और मुझे आराम के राजा और इज़राइल के राजा के हाथ से बचा ले और मेरे युद्ध को उठा ले। इस प्रकार का संदेश तिग्लत पिलेसर के हाथ आहाज भेज रहा है। Now, when Ahaz asked help from Tiglath-Pileser, you see Isaiah intervenes. So Isaiah's ministry begins here, in the time of Ahaz, or Isaiah's ministry you can see here. Now, what will Isaiah say? You can read it from chapter 7 to 8, but I have just written one verse. In chapter 7, verse 4, he says, take heed and be quiet, means you just relax. Don't panic, fear not be faint-hearted of these two smoking firebrands. So, God is calling Syria and Israel as just smoking firebrands. They are just smoking. Don't worry about them. They are not going to devour you. Don't worry about them. Don't fear. Just take heed and be quiet. Trust in the Lord. But Ahaz was not able to believe. So what is the response of Ahaz? It was unbelief and lack of trust in the words of Isaiah or in the words of God. और जब तिग्लत पिलेसर को ये संदेश भेजने की योजना कर रहा था, इस प्रकार अपने आप को झुकाने की कोशिश कर रहा था, परेशान हो रहा था, आहाज के सामने यशायाह प्रकट होता है और यशायाह की सेवकाई को वहां पर हम देख रहे हैं, जिसे हम यशायाह का किताब 7 और 8 अध्याय में देखते हैं। लेकिन एक आयत जो आपके सामने जो रखना चाहूंगा वो 7 के 4 में हम देखते हैं, जहां पर वो आहाज के सामने प्रकट होते हुए ये संदेश दे रहा है कि तुम सावधान हो जाओ और शांत हो जाओ और अपने आप को परेशान ना करो, क्योंकि ये जो दो देश तुम्हारे खिलाफ आ रहा है वो केवल दुआओं निकलती हुई लुकटिया है और कुछ नहीं है। अपने आप को शांत करो, इस प्रकार की परमेश्वर का संदेश देता है। लेकिन उसके प्रत्युत्तर में आहाज परेशान होते हुए परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है। Yeah, so Ahaz is not believing God. So what happens? God will tell him, or Isaiah tells Ahaz, okay, you can ask a sign from the Lord. Or to help Ahaz's unbelief, God is ready to give a sign so that you may believe. But what did Ahaz said? He said, I will not ask. I will not tempt God, not because he was having faith, but he was already determined to ask the help of Assyria. He was not giving a space to trust in God. So he denies, to ask a sign from God. But Yahweh by himself, he only gives a sign. And what is the sign? Therefore, the Lord himself shall give you a sign. What is that? Behold, a virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. Before the child shall know to refuse the evil, the land you dread shall be forsaken. और यशायाह आहाज के सामने यह संदेश रखता है कि तुम परेशान ना हो, लेकिन यहोवा से एक चिन्ह की मांग करो और परमेश्वर तुम्हें यह चिन्ह देगा कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। लेकिन 7 के 11 और 12 में उसके प्रत्युत्तर में आहाज कहता है कि मैं परमेश्वर से कोई चिन्ह नहीं मांगूंगा, मैं परमेश्वर का परीक्षा नहीं करूंगा। वो इसीलिए नहीं कि वो परमेश्वर का परीक्षा नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने मन में पहले ही ठान लिया था कि अशूर के सम्राट तिग्लत पिलेसर के सामने वो मदद को मांग लेगा। इसीलिए वो ये कहता है और उसके प्रत्युत्तर में यशायाह ये भविष्यवाणी करता है कि तुम्हारे लिए परमेश्वर स्वयं एक चिन्ह भेजने वाला है। और 7 के 14 से लेकर 16 में ये कहता है कि परमेश्वर अपने आप से ही एक चिन्ह देगा और एक कुंवारी बच्चे से गर्भवती होगी और एक संतान देगा जिसका नाम इम्मानुएल होगा, और वो बुराइयों को इनकार करने सीखने से पहले ही तुम्हारा देश का तिरस्कार हो जाएगा। Now the sign is a child shall be born, and the child shall be born, and before the child shall become, mature or to determine about what is right and evil and all those things, this land that you are dreading shall be destroyed. So the sign is the birth of a child. And we read in the next chapter, that is chapter 8 verse 3 and 4, it says, and she conceived. Now
I have just wrote few parts of it, and what you read here is, Isaiah goes to his wife, and his wife will get conceived, and she bear a son, and before the son knows how to cry, my father, it says the wealth of Damascus and the spoil of Samaria will be carried away. So the birth of the son here is related to the son which was born to Isaiah in chapter 8. और यहाँ पर 7वें अध्याय में परमेश्वर की ओर से जो चिन्ह आ रहा है वो ये है कि एक बच्चे का जन्म होगा और वो इस्राएल के लिए या यहूदा के देश के लिए, आहाज के लिए एक चिन्ह बनेगा। और 8वें अध्याय में हम देखते हैं कि यशायाह अपनी पत्नी के पास जाता है और वहां पर अपनी पत्नी गर्भवती हो जाती है और एक बच्चे को जन्म देती है। और बच्चे का जन्म होते अपने पिता को बुलाने से पहले ही दमिश्क का देश और शमरोन के देश दोनों ही से ही धन संपत्ति लूट कर अशूर ले जा रहा है। इस प्रकार की बातों को हम देख रहे हैं। Now the son that was born to Isaiah was named Maher-shalal-hash-bash, and about this child it was said that before this child will become mature and call his father, this two people group or these two kingdoms which are waging war against Judah will be destroyed. और हम 8वें अध्याय में देखते हैं ये बच्चे का नाम महर-शालाल-हाश-बाश ये दिया गया है। और यहाँ पर ये कहा गया है कि ये बच्चा अब बड़ा होते हुए अपने पिता को पिता बुलाने से पहले ही ये दोनों ही अन्य जाति देश जो है अशूर के अधीन हो जाएंगे, ले गया जाएगा। Now, the identity of this child may be a confusion now for many of you who hear me. Who is this child? Because, you read in Matthew chapter 1, verse 23, that this child, virgin born, is identified with Jesus. और हम यहाँ पर ये सोचते होंगे कि ये संतान या बच्चा आखिर में है कौन, उसके पहचान के बारे में हम असमंजसता में होंगे, क्योंकि मत्ती के सुसमाचार 1:23 में कुंवारी से जन्म लिया हुआ जिस संतान के बारे में जिक्र किया गया है वो यीशु मसीह है। इस प्रकार लिखा गया है। Now you see, when you study the prophetical books, you should know that the prophetical books, when it brings prophecies, similar like this, it will have an immediate relevance and also a futuristic relevance. और हमें एक विशेष बात जो भविष्यवक्ताओं की किताब में देखना चाहिए और भविष्यवाणियों के बारे में समझना चाहिए वो ये है कि जब भविष्यवाणी किया जाता है वो उसका एक तुरंत होने वाला मूल्य को बताया गया है और साथ ही साथ कई दूर भविष्य में होने वाले उसके मूल्य को भी वहां पर छिपाता है और वहां पर हम देखते हैं। Now remember, this is a sign to Ahaz. Now, this sign has to do something with Ahaz. So, in the time of Ahaz, the birth of Maher-shalal-hash-bash was the sign that these two kingdoms will be destroyed. और इसीलिए जब ये भविष्यवाणी किया गया था, आहाज के समय में ये भविष्यवाणी पूरा होना था और आहाज के समय में महर-शालाल-हाश-बाश का जन्म होता है और वो ये राजा के लिए एक चिन्ह था। So in the immediate relevance, this child is the son that was born to Isaiah through his wife. But in the futuristic, context, it has to do with Jesus. और वर्तमान के क्षेत्र में ये जो है महर-शालाल-हाश-बाश ये चिन्ह के रूप में उभर कर आता है और आहाज के जीवन में भविष्यवाणी पूरा हो रहा है, लेकिन उसके भविष्य का मूल्य बताए तो यीशु मसीह का जन्म की ओर ये भविष्यवाणी इंगित कर रहा था। Okay, I'll just stop there about the child. This virgin, the word virgin also in the Hebrew, it is young woman. It is young woman in the Hebrew. In the New Testament, we can see the word virgin in Greek has been used. Well, I would explain it just as, the immediate and the futuristic relevance of the sign that was given by Isaiah. और हम ये देखते हैं कुवारी ये शब्द भी इस्तेमाल किया गया है। यदि इब्रानी भाषा हम पढ़कर देखेंगे वहां पर ये दिखाया गया है एक जवान लड़की के द्वारा एक बच्चा जन्म लेगा। और हम नए नियम में यूनानी भाषा में ये देखते हैं कि कुवारी ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। मैं इसके बारे में इतना कहूंगा कि वो वर्तमान के लिए भी मूल्य को रखता था और भविष्य के लिए भी मूल्य रखने वाला एक भविष्यवाणी था।
Now we have another 3 more slides here, which is Isaiah's words to Hezekiah, but the time is already past. It has become 9:10. So I'll ask the whether I can continue, or maybe tomorrow we can take up from here. और क्योंकि मेरे पास और 3 स्लाइड बचे हैं और 9:10 हो चुका है, मेरे ख्याल से समय समाप्त हुआ है। शायद मैं इसके बारे में कल आगे जारी रखना चाहूंगा। So tomorrow will be a Is better. that fine? Yeah, tomorrow will be better. Okay, yeah, that is good. Yeah, tomorrow we will take up from here. So thank you very much for listening, and thank you for translating. It was a wonderful translation. Thank you very much. Thank you all for listening. और आप सारे मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। God bless you. Thank you, sir. Thank you very much for the wonderful class. You are a well scholar in this area. We understood historically, you proved, and very nicely you explained this book. We all enjoyed. I think we need your slide again to be understand the deep, okay, the meaning as well as the things what you shared. Hope that you will give the slides to us. We will be able to go again. Thank you very much. And now I over to Atul Jadhav, Pastor, for the intercessory prayer. Pastor Atul Jadhav. यस, थैंक यू सर। आइए हम लोग कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं सबसे विनती करता हूँ कि कृपया एकदम से ग्रुप को छोड़ के मत जाइए, लेकिन प्रार्थना में बने रहिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे। पहला विषय मैं विनती करूंगा ब्रदर शशिधरन से कि आप जो स्क्रीन पर दिया गया विषय है उसके लिए प्रार्थना में अगुवाई, वर्ल्ड उसके लिए प्रार्थना कीजिए। पैंडेमिक इन वेरियस कंट्रीज लाइक यूएस, कनाडा, ब्राजील, इसराइल एंड अदर। तो इन विषयों के लिए प्रार्थना कीजिए। मिडल ईस्ट के लिए प्रार्थना कीजिए कि वहां पर शांति बनी रहे। बेरूट के लिए प्रार्थना कीजिए कि वहां पर जो कुछ दिनों पहले जो ब्लास्ट हुआ था उसमें परमेश्वर फिर से उनको रिस्टोर करे, उसके लिए भी दुआ प्रार्थना कीजिए। और प्रार्थना कीजिए सब देशों के बीच में और उनके अगुवे लोगों के बीच में शांति बनी रहे, एक अच्छी लीडरशिप आए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। और संपूर्ण देश में एक बेदारी आने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो ब्रदर शशिधरन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। Praise Lord, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये शाम के टाइम प्रभु इकट्ठा होकर प्रभु आपके चरणों में आके कोई विषय के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया, हाले वर्ल्ड इश्यू के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। ये विश्व महामारी से हालेलुया विदेश राष्ट्र में हालेलुया बहुत सारा तकलीफ हुआ है प्रभु, जैसा है प्रभु अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, इसराइल, ये दुनिया में पूरा विश्व महामारी की तरफ बहुत सारा तकलीफ से आगे गुजर रहा प्रभु। उधर शांति दे, समाधान दे और बीमारी से पूरा छुटकारा दे के प्रभु राज्य को आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। और मिडिल ईस्ट के लिए प्रार्थना करता है और शांति और समाधान होने के लिए प्रभु हालेलुया हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया जो ये दिनों में बेरूट में ब्लास्ट हुआ था और बहुत सारा नाश उधर हुआ है, उसके मरम्मत करने के लिए हालेलुया उसको आगे बढ़ने के लिए प्रभु एक हालेलुया मरम्मत करके और राज्य को और उद्धार पाने के लिए प्रभु सहायता कीजिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। और राज्य में आपस में एक शांति और समाधान बन के हालेलुया अच्छा लीडरशिप के साथ, राइट पॉलिसी के साथ हालेलुया प्रभु हालेलुया राज्य को आगे बढ़ने के लिए प्रभु हालेलुया सहायता कीजिए। और उनको बुद्धि ज्ञान सब दे दिए प्रभु एक उद्धार पाने के लिए। हालेलुया देश विदेश में दुनिया में पूरा एक रिवाइवल आने के लिए प्रभु हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारा तकलीफ सब पब्लिक को हुआ है प्रभु, हर इलाकों में तकलीफ से गुजर रहा है प्रभु। इधर और शांति और समाधान लेके प्रभु हमको आगे बढ़ने के लिए सब लीडर के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आपस में मिलजुल के शांति और समाधान बन के राज्य को आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता कीजिए प्रभु। हालेलुया सब कुछ आपका हाथ में और एक बार देते हैं प्रभु।
हमारा प्रार्थना सुना, आदर और महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। आमीन। थैंक यू ब्रदर। हम लोग अगली प्रार्थना की ओर जाएंगे। मैं करूंगा सिस्टर सुषमा धो से कि आप इन विषयों के लिए प्रार्थना कीजिए। कोविड सिचुएशन के लिए प्रार्थना कीजिए। दिन प्रतिदिन बहुत सारे जो नंबर है, जो पेशेंट है, वो जो कोविड के वो बढ़ रहे हैं। परमेश्वर सभी को सुरक्षा देने के लिए प्रार्थना करे और सही नंबर जो है वो लोगों को बताने के लिए प्रार्थना करे। किसी प्रकार रूमर्स या किसी प्रकार का जो बेवजह का जो फैलाना है, ऐसी न्यूज ना के, और प्रार्थना करेंगे कि समुदाय में जो भी का जो वायरस जो फैल रहा है और जो अन्य वायरस के विषय में हम लोग सुन रहे हैं, तो परमेश्वर उसमें भी साले सुरक्षा दे, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कीजिए भी जितने भी मेडिकल पर्सनल्स है, जैसे डॉक्टर्स, नर्सेस और जो भी अस्पतालों में पाए जाने वाले या उस डिपार्टमेंट पाए जाने वाले सभी लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु उन सभी को सुरक्षा दे, सब इन्फेक्शन से सुरक्षा दे, और जो है जो भी लेने वाली आवश्यकता है, जैसे जो कपड़ा वो पहनते हैं, किट वो पहनते हैं, या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स की उनको आवश्यक होती है, वो सब कुछ प्रभु उनको दे। ऑक्सीजन सिलेंडर्स दे और अच्छा सैलरी उनको परमेश्वर देने की दुआ करेंगे। जितने भी कोविड या जो बिना कोविड से ग्रसित ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उनको सुरक्षा दे। जो भी बहुत ही गंभीर अवस्थाओं में है, उनको परमेश्वर चंगाई दे, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कीजिए एक मतलब से जल्द वैक्सीन आके और जो मेडिकल जो हो रहा है वो सफल, इसके लिए प्रार्थना की। सभी गवर्नमेंट अधिकारियों के लिए इसके लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर उनको विशेष बुद्धि ज्ञान देने के लिए, ताकि जो भी सिचुएशन है उनको सही रीति से हैंडल कर सके, संभाल, उसके लिए प्रार्थना करें। और प्रार्थना कीजिए सभी लोगों के लिए कि उनकी मानसिक और उनकी जो भावना या उनकी आर्थिक जो स्थिति है उसमें बदलाव और उसमें एक स्थिरता आने के लिए प्रार्थना कीजिए। ईश्वर की शांति और सांत्वना सभी ऐसे लोगों जीवनों में, उनके परिवार में विशेष करके रहे, जिनके जो इस पैंडेमिक के कारण अपने लोगों गवा चुके हैं, और सभी लोगों में परमेश्वर की शांति है। तो इन विषयों के लिए सिस्टर सुषमा प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से पिता आपके चरणों में आते पिता, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए। राजा परमेश्वर प्रभु हम सब भाई बहनों को प्रभु इकट्ठा किया, प्रभु धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हालेलुया, आपके पवित्र वचनों से पिता परमेश्वर आपने सुनने के लिए जो सहायता मदद किया, प्रभु धन्यवाद देते राजा परमेश्वर। पिता हम प्रार्थना करते राजा परमेश्वर, हर एक विनती प्रार्थना को प्रभु आपके चरणों में रखते पिता, धन्यवाद देते राजा परमेश्वर। प्रभु पिता हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जो कोविड से परेशान है पिता परमेश्वर, भाई बहन पिता परमेश्वर, ओ प्रभु पिता परमेश्वर बीमारी से प्रभु जूझ रहे पिता, उन्हें आपका चंगाई, आपका छुटकारा होने के लिए प्रभु उनके ऊपर आपका सामर्थ्य हाथ आने के लिए मैं प्रार्थना करते राजा परमेश्वर। और प्रभु ये बीमारी पिता परमेश्वर कम से कम होने के लिए पिता परमेश्वर, कोविड से बीमार लोगों का पिता परमेश्वर नंबर कम होने के लिए मैं प्रार्थना करते राजा परमेश्वर। बहुत से कम लोग प्रभु ये बीमारी में एक चपेट में आए पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते पिता परमेश्वर। कोरोना वायरस से पिता परमेश्वर जो जूझ रहे सब लोग पिता परमेश्वर, ये पिता परमेश्वर जो प्रभु फिर से अटैक आने वाला पिता ऐसे सुनने में आ रहा प्रभु पिता परमेश्वर, ये प्रभु फिर से नहीं आए पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते पिता, आपने प्रभु ये बीमारी को प्रभु दूर कीजिए जल्द से जल्द पिता परमेश्वर। हालेलुया, हर एक नर्सों के लिए, हर डॉक्टरों के लिए पिता प्रार्थना करते राजा परमेश्वर, उनकी सुरक्षा के लिए पिता परमेश्वर, उनको जो कुछ पिता परमेश्वर जरूरत है पिता परमेश्वर देखभाल करने के लिए, मरीजों को पिता परमेश्वर उन्हें सही रीत से प्रभु अच्छे टाइम से पर मिलने के लिए सहायता मदद करो पिता परमेश्वर, और आपका खास सुरक्षा उनके ऊपर होने के लिए मैं प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। प्रभु पिता पर ऑक्सीजन सिलेंडर प्रभु जो कम है पिता परमेश्वर, ओ प्रभु और भरपूरी से होने के लिए पिता परमेश्वर, जो सीरियस केस है पिता परमेश्वर उन सबके पास तो ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचने के लिए प्रभु सहायता मदद करो पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर पिता प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, डॉक्टरों को, नर्सों को पिता परमेश्वर सही टाइम पे पिता परमेश्वर उन्हें हर एक पिता परमेश्वर सैलरी मिलने के लिए प्रभु सहायता मदद करो पिता परमेश्वर। उनके पिता परमेश्वर आपकी सुरक्षा पिता होने के लिए मैं प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। कोरोना वायरस से जो पीड़ित है पिता परमेश्वर उनके लिए मैं प्रार्थना करते प्रभु, आपके नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर, उनके ऊपर आपकी कृपा आपकी दया होने के लिए मैं प्रार्थना करते राजा परमेश्वर। प्रभु पिता धन्यवाद देते पिता, आपकी महिमा के लिए पिता आपने ऐसा किया प्रभु, धन्यवाद देते पिता। पिता प्रार्थना
प्रार्थना करते पिता परमेश्वर हर एक पिता अधिकारियों के लिए प्रभु पिता परमेश्वर, जो प्रभु पिता परमेश्वर इस पिता बीमारी में प्रभु देखभाल कर रहे पिता परमेश्वर, उन्हें प्रभु आपका बुद्धि ज्ञान मिलने के लिए प्रभु सहायता, सही रीत से प्रभु हर एक चीजों को अच्छी रीत से होने के लिए प्रभु उन्हें अपने परमेश्वरी ज्ञान से भर के पिता परमेश्वर हर एक बातों को सही रीत से करने के लिए प्रभु सहायता मदद करो पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देते पिता, आपके नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, वो जो प्रभु पिता परमेश्वर पिता बुरी परिस्थिति से बहुत लोग हैं ऐसे जो जूझ रहे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु आपका सुख शांति आनंद आने के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। हर एक विश्वासी भाई बहनों को पिता आपके सामर्थ्य हाथों में देते राजा परमेश्वर। वायरस पिता परमेश्वर किसी के घर पे किसी के परिवार पे नहीं अटैक होने के लिए प्रार्थना करते राजा परमेश्वर। आपका सामर्थ्य हाथ प्रभु हर एक के ऊपर उतरने के लिए मैं प्रार्थना करते राजा परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु पिता परमेश्वर, आपका शांति आनंद हर एक के जीवन में उतरने के लिए मैं प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। आपके नाम की महिमा हो प्रभु, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु पिता, धन्यवाद देते, आपके नाम की महिमा करते पिता परमेश्वर। सारा मान सम्मान महिमा गौरव आपको देते, प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमीन। थैंक यू। Thank you very much. Over to the chairperson. I request Reverend Devendra Shinde, sir. So please lead us in prayer. And also please remember, Neander sir is on the way to UK. So please pray for his journey mercies. Over to Devendra Shinde, sir. प्यारे पिता परमेश्वर, शुक्रिया अदा कर रहे, धन्यवाद दे रहे आपको, इसलिए कि प्यारे पिता मसीह के द्वारा आपका अनुग्रह इस समय आपने हम पर छाके रखा है। खुदावंद बाप, अद्भुत तरीके से प्यारे पिता आपके पवित्र वचन को आप हमें सिखा रहे प्यारे पिता, धन्यवाद दे रहे। ईसा मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप हमें चला रहे मेरे मालिक। खुदावंद बाप, खुदावंद बेटे, खुदावंद पाक रूह, धन्यवाद देते, शुक्रिया अदा करते हैं इस शिक्षा के लिए। यह हमारे जीवन में हमें बहुत आशीषित करे प्यारे पिता, और तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए प्यारे पिता जो भी आप हमें सिखा रहे प्यारे पिता उसका बहुमूल्य उपयोग हो जाए प्यारे पिता। धन्यवाद दे रहे प्यारे पिता, इस देश की हालत को आप बदल रहे, इस देश में आप आपकी बेदारी ला रहे प्यारे पिता, लोगों के बीच में प्यारे पिता आप जो बदलाव ला रहे प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद दे रहे प्यारे पिता। धन्यवाद देते खुदावंद ईसा मसीह, ये जो शिक्षा ले रहे प्यारे पिता, जो भी आयोजन कर रहे प्यारे पिता, पास्टर जोमन मैथ्यू के लिए हम धन्यवाद दे रहे प्यारे पिता, जिन्होंने ये योजना रखी है प्यारे पिता। अगापे बाइबल इंस्टीट्यूट को भी आप आशीषित कीजिए खुदावंद बाप, और ये सब दुआ हम आपके पवित्र चरणों में बड़ी विनम्रता से सबमिट कर रहे प्यारे पिता। दुआ कर रहे मेरे मालिक, ये और अच्छा बने और बहुताओं के लिए जीवन में प्यारे पिता बदलाव लाने के लिए ये उपयोगित हो जाए प्यारे पिता, इसका बहुत बड़ा यूज हो जाए प्यारे पिता, बहुत लोगों के जीवन में इसका अच्छा अनुग्रह आ जाए प्यारे पिता, इसलिए हम दुआ कर रहे प्यारे पिता। धन्यवाद देते हैं खुदाए बाप, खुदाए बेटे, खुदाए पाक रूह, इस अच्छे समय के लिए मसीह के द्वारा दुआ की है, इसलिए सुन और कबूल कर, आमीन। और हमारे स्वर्गीय पिता का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा और पवित्र आत्मा की पवित्र सहभागिता हम सबके साथ बनी रहे, आमीन। Thank you for everyone. Thank you for attending. I hope that today's class was a blessing to you all. Tomorrow evening 7:30 we will meet again to learn the second part of Isaiah. Don't miss the class, and God bless you. Have a good time.